So before I begin, I would like to convey my warm regards to everyone and Jai Jagannath Ji to each and every participant who joined today. I'm sorry, there may be a little difficulties. So once again, I would like to welcome all the participants, and I would like to convey my warm regards to each and every one who are present over here, and Jai Jagannath Ji to each and everyone. And as usual, to discuss and to deliberate, today we have decided to discuss the very तरह तो तो इस one minute, समय sir. हम कोई उनकी या Sir, please. या sure, sure. Yeah, yeah. So as usual, sir, तो uh, मेरा आवाज आपको आ रहा है ना? हाँ हाँ आपकी आवाज फिर भी मैं एक ऑल्टरनेट इंटरनेट सेट कर देता हूँ. Okay. So as usual, we come up with a very important topic called Lord Jagannath Ji, the driving force of Odisha's economic and cultural growth. And to discuss, to topic with each and everyone, we have decided to invite Dhananjay Kapoor sahab. He is a writer, director, actors, and producers. And we met in one of our programs at Mumbai. And since then, I come to know about their devotions and their work related to Lord Jagannath Ji and the spiritualities. So, sir has very rich profile, and he did many work in the many fields, many actors. So let me introduce him formally. Sir is a founder of and the managing trustee of Sri Jagannath Balbhadra Subhadra Charitable Trust, and sir is also the founder of the Bandira Tree, a theatre group in Mumbai, and sir is also internationally awarded a filmmaker. Along with that, Sir has started his career in the year of 1992-1993 as a graphic designer. And after the 3 years later, the cinema caught his fancy uh, work, and he started working in the film industries in 1995 onwards. Sir has the first jobs with the production assistant in a boutique film production company called Nobel House at Mumbai. 2 years later, Sir joined the Bharat Bala production to work on the A.R. Rahman's Vande Mataram, a patriotic projects that commensurate on the 15 years of India's independence with over 300 short films and the several music videos. Sir, from there, Sir learned the non-linear film editing, and that gave him the opportunity to join the Rajataru Video Sonic Limited, and a year later as an editor. 1.5 years after, in June 1999, Sir joined the J. Walton Thompson, where in a due course of time he produced 200 plus TV commercials and also directed quite few. Sir also have been national head of the film for Bartley, Bogle, Hati, and Who of Earth and Air film, where he produced the several spots with the celebrities with like Amitabh Bachchan, Vidya Balan, Bipasa Basu, Sonu Sood, and many more. Now, sir is an independent writer, directors, actors, producer, and have film theater company named Bhandira Tree. Sir's last assignment before beginning the work on the Bhagwan Jagannath Katha concluded just month before the onset of COVID-19. It was a 15 hours documentary features on the 43rd Chief Justice of India, Justice Sri T.S. Thakur. Sir has written, directed, and edited this mammoth documentary projects that could very well be one of the India's longest biopic in the recent decade. Due to such opportunity that life has provided to him over the last 29 years, he
said, I have worn the several hats of my life, and as a producer, as a director, as a film editor, and as a writer. And sir is, the widely known, especially in the film industries, has been have a many awards, and he's also, the work with some foreign foreign company as such, even university as well, like University of California, and many more things. Sir, on behalf of development sector community, I take honor and privilege to welcome you. And I'm sure that the topic, the content that you are going to deliver, which is quite unique, and no one think on that directions that you are going to teach us today. Once again, I welcome you, and I kindly request you to proceed for the session, sir. Please. Thank you. Thank you. Thank you so much for that kind introduction, Sanjay ji. And I think Lord Jagannath has been very kind to me in providing all the opportunities, because when I came from the small city of Patna, I had no technical education. I did not even have enough money. I only came with 1,300 rupees in my pocket. And from there to Patna to Los Angeles, God has blessed me and I have covered that distance. And it is only with the blessings of the Lord. I have been in some very, very extremely dangerous situation. I was once about to go inside the local train, and He has saved me. I was in the bus very close to Everest building, Tardio, and even Air India building when the bomb blast happened in 1993 in Mumbai. And the Lord had saved me from there as well. So I think I'm a very blessed soul and child of God. And so I usually start any session on the Lord with Jagannath Ashtakam. But today, as you all know, कि अभी भगवान एक लीला रच रहे हैं, जिसमें भगवान अभी अपने आप को अस्वस्थ बताते हैं, बीमार बताते हैं, और 14 दिन के लिए उनका ये एक रिक्यूपरेशन पीरियड, रिकवरी पीरियड चला जाता है, जिसको हम अनासरा कहते हैं। और भगवान का मंदिर भी इस समय बंद हो जाता है, और जिस जिस घर में भगवान की प्रतिमा होती है, उनका अर्चा विग्रह होता है, लोग नोबडी वर्शिप्स लॉर्ड जगन्नाथ फॉर दीज 14 डेज। तो मैं जगन्नाथ अष्टकम हमेशा करता हूं, मगर अभी उस जगन्नाथ अष्टकम को करने की मनाही है, तो हम जगन्नाथ अष्टकम नहीं कर सकते हैं। तो जय जगन्नाथ करके हम आरंभ करते हैं अपनी इस सेशन को। तो मैं बहुत ही तामसिक इंसान था, और बहुत ही और जैसे क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग में था, फिल्म में था, तो मैं किसी से दूसरा नहीं था, अलग नहीं था, जैसे सब होते हैं वैसे ही था। बट 2013 में ऐसी स्थिति आई कि मैं आई बिकेम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एंड देन ऑन दी around 2018-19, I heard a voice within my heart that Lord Jagannath has come to my home in the form, Lord Krishna has come in the form of Lord Jagannath in my house. तो वहां से मेरी जगन्नाथ भक्ति आरंभ हुई। वो भी एक बड़ी रोमांचक कथा है, बट इट विल कंप्लीटली डिविएट द टॉपिक दैट हाउ इट हैपेंड, and we may discuss that at some point later, because what I today want to address is that Lord Jagannath is the Lord of the universe, and he is not only the driving force of or the socio-economic force of Odisha, but the entire world. See, in if you all would be able to just type one word, which is called the Triratna symbol of Buddhism. Just type somewhere the Triratna Buddhism symbol of Buddhism. Or can you share my screen,
for this one little thing that I'm showing. धनंजय जी, आप ना हिंदी में बोलिए, बिकॉज कुछ लोग शायद है ना हिंदी में ही सुनना चाहेंगे। अच्छा, ये हिंदी में बेटर रहेगा तो मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि कई उड़िया लोग भी हैं, कई लोग बाहर से भी हैं। अच्छा, देख लीजिए ऑडियंस में, क्योंकि सुमिता ने मेरे को बोला था कि वो हिंदी में बात करेंगे क्या, तो फिर जिसको समझ में नहीं आएगा प्रेफर हिंदी, वी प्रेफर हिंदी। अच्छा, आप हिंदी में करना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी में ही करता हूँ। हम लोग हिंदुस्तान में भाई। If anybody does not understand Hindi, please request from the audience. Okay? मैं इंतजार कर रही हूँ कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को हिंदुस्तान में पूरा सम्मान मिले, वही कंपलसरी कर दे, किसी भी स्टेट में रहे, लेकिन उसे हिंदी जरूर पढ़नी पड़े। देखिए, हिंदी में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल सकता हूँ। आप मिक्स बोल सकते हैं। और मैं मिक्स भी बोल दूंगा। तो मेरी स्क्रीन शेयर कर दें तो आप लोगों को ये दिखेगा। ये देखिए, ये सिंबल है, ये त्रिरत्न सिंबल है बुद्धिज्म का। कैन यू सी दिस? और ये देखिए, ये सिंबल है नील चक्र का। हाउ सिमिलर दे आर। ये जो, अगर आप इसे ऐसे आधा घुमाएंगे तो ये जो ऊपर जो आपको डिजाइन्स दिख रहे हैं, ये आधा त्रिरत्न का डिजाइन। और यहाँ ये जो आपको गोल चक्र भगवान का दिख रहा है, इसी चक्र को आप देखिए, भगवान की आंखें हैं ऐसे ही बनी हुई जगन्नाथ जी की। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लॉर्ड जगन्नाथ इज, नाउ यू कैन स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन इफ यू वांट, कि भगवान जगन्नाथ की जो कल्ट है, की जो प्रथा है, उसमें हम कई पंथों का समावेश देखते हैं, कई पंथों। मैं भगवान के ओरिजिन पे, जो वैदिक और पुराणिक ओरिजिन है भगवान का, जो उसमें मैं बाद में आता हूं। अभी मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये तो बुद्धिज्म का आप इन्फ्लुएंस देखिए। और बुद्धिज्म के अनुसार जो भगवान के जो 3 आइडल हैं या अर्चा विग्रह है, उनको वो त्रिरत्न के नाम से देखते हैं। और वो इसलिए क्योंकि कलिंगा, या आप उड़ीसा, आज का उड़ीसा बोले, वो 543 के बाद, गुप्ता वंश के बाद वो बुद्धिस्ट किंग के अंडर चला गया था, और उनका राज करीब 500 साल रहा। इस 500 साल के राज में भगवान जगन्नाथ की स्तुति में बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जो बुद्धिज्म की, वो आज भी जगन्नाथ जी के स्तुति में उसका इन्फ्लुएंस पाया जाता है। जैसे जो उनकी जो ये वो ये भी समझते हैं कि जो ब्रह्म पदार्थ है भगवान के अंदर, वो बुद्ध का एक रेलिक है, मतलब उनका शायद एक दांत है या कुछ ऐसा है, उनकी ये मान्यता है। और इसी तरीके से जब हम जैनिज्म का भी इम्पैक्ट देखते हैं जगन्नाथ जी के कल्ट में, अगर जब ये अगर बुद्धिस्ट अपने 3 रत्न को जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा में देखते हैं, 3 रत्न उनके ये हुए, बुद्ध हुए, धर्मा हुआ और संघा हुआ, मतलब जो उनकी जो टीचिंग्स हैं उसको वो धर्म कहते हैं, और संघ हुआ जो मोनेस्टिक ऑर्डर होते हैं, और बुद्धा। तो उनके जो ये 3 रत्न कहते हैं बुद्धिज्म के, वो उस भगवान जगन्नाथ में के तीनों अर्चा विग्रह में वो उनको पाते हैं। उसी तरीके से जगन्नाथ जी के तीनों अर्चा विग्रह में जैनिज्म
यान जगन्नाथ जो आप उड़ीसा के मंदिरों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि महावीर और बुद्ध के स्टैचू मंदिरों के चारों तरफ लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्टैचू। ये प्रभाव रहा है जैनिज्म का और बुद्धिज्म का जगन्नाथ जी पर। और भगवान जगन्नाथ जिन्होंने अपने हाथ ऐसे खोल करके अपने वहां पर स्थित है या वहां पर प्रादुर्भाव उनका हुआ है, वो सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें उन्हीं से निकलती हैं और उसी में समा जाती हैं। तो वो किसी में भेदभाव नहीं करते, चाहे वो बुद्धिस्ट हो चाहे वो जैन हो। उसके बाद आप देखेंगे कि संत कबीर, गुरु नानक जी की एक बहुत ही अच्छी आरती है जो आज भी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में सबसे पहले सुबह सुबह बजती है। और ये जगन्नाथ जी की स्तुति गुरु नानक ने की थी पुरी के समुद्र पर आकर। अगर आप लोग YouTube पे जाएं और बस खाली आरती टाइप कर दें, आरती बाय गुरु नानक फॉर लॉर्ड जगन्नाथ, तो आपको ये आरती मिल जाएगी देखने को। एक बहुत ही सुंदर आरती। और उन्होंने उसको अपने जिस तरीके से वो भगवान को निराकार रूप में देखते हैं, उस रूप में उन्होंने वो आरती की रचना की है और उसी रूप में आज भी वो बजती है अमृतसर के गुरुद्वारे में। तो ये प्रभाव है संतों का जो दूसरे पंथ से सनातन धर्म के निकले। सिखिज्म जो है वो हम सनातन धर्म से ही निकला है। गुरु नानक के जो पिता थे वो सनातनी थे। तो और गुरु नानक जी ने जब जब आए तो उस समय चैतन्य महाप्रभु भी पुरी में उपस्थित थे। तो चैतन्य महाप्रभु एक तरफ साकार रूप से भगवान की पूजा करते हैं, जिसको हम गौर संप्रदाय कहते हैं, और सिखिज्म जो है, सिख संप्रदाय जो है, वो निराकार रूप से भगवान की पूजा करता है। और वहां पर आकर के आज भी आप जाएंगे, वहां देखेंगे कि गुरु नानक जी का गुरुद्वारा है, जहां पे जिस जगह गुरु नानक ठहरे थे, आज उस जगह गुरुद्वारा है। दिस इज अमेजिंग। कबीर आए, कबीर मठ आप जाकर के देखिए, वहां पर एक भगवान कबीर जी का मठ, कहते हैं कि जब जब वहां पर पानी भर जाता था, समुद्र देवता की, तो समुद्र देवता अपनी पुत्री से मिलने के लिए बार बार आ जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी की पत्नी जो है वो महालक्ष्मी है। इसके बारे में बाद में आऊंगा मैं, मगर ये एक छोटी सी कथा मैं बताता हूँ। तो वहां के जो पुजारी थे बड़े परेशान हो जाते थे कि ये कैसे पानी भर जाता है, पूरे मंदिर में पानी भर जाता है, सेवा है वो पूरी नहीं हो पाती है। तब वहां पर एक समय भगवान ने अपने पुजारियों को कहा कि एक बार मेरा एक संत आएगा और वो तुम्हें इससे निवारण दिलाएगा। तो एक बार जब कबीर आए तो उन्होंने अपनी, आज भी वहां देखेंगे आप कबीर मठ में भगवान, उन कबीर जी की आशीष बाड़ी है। आशीष बाड़ी मतलब एक लकड़ी का ऐसा होता है यू, और उसके ऊपर हाथ रख के ऋषि मुनि ऐसे मंत्र जाप करते हैं। आज भी आप जाएंगे कबीर मठ में तो वहां पर उन्होंने मंत्र जाप अपनी वहां पर उन्होंने जाप करना शुरू किया कबीर जी ने। और कहा जाता है कि उसके बाद कबीर मठ के गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, इन सब का समावेश आपको जगन्नाथ जी में दिखेगा। अब आपको एक और चीज बता दूं, हरिदास ठाकुर ये मुस्लिम डिवोटी थे, इनका नाम हुआ हरिदास। ये बहुत ही बड़े भगवान के भक्त हुए जगन्नाथ जी के। और एक भगवान के भक्त हुए सालबेग, जिनकी समाधि आज भी ग्रैंड रोड पे है, जहां से पुरी की जगन्नाथ यात्रा निकलती है। तो और हर रथ यात्रा में तीनों रथ, भगवान के तीनों रथ
एक एक मिनट के लिए उस सालबे की समाधि के सामने खड़े होते हैं और उनको अपना आदर प्रदान करते हैं। और सालबेग जो था वो मुस्लिम था। ये बात और है कि 18 बार मुगल राजाओं ने, मुस्लिम राजाओं ने और शेख ने और नवाबों ने, बंगाल के हो चाहे ईरान से हो चाहे अफगानिस्तान से हो, उन लोगों ने भगवान की मंदिर पर हमला किया, वहां के उनके उनके आभूषण चुरा लिए, उनके आभूषण ले लिए और भगवान के अर्चा विग्रह को उन्होंने नष्ट करने का साहस किया। कर नहीं पाए, का साहस किया। और बड़े उनके पुजारी उनके आक्रमण हो जाता था, वो बोलते थे जो खजाना है मेरा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो उन्होंने भगवान के अर्चा विग्रह को उनको छूने नहीं दिया। तो इसलिए आज की डेट में आप ये कह सकते हैं कि उस मंदिर के सामने लिखा है कि नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड। वो इसलिए क्योंकि 18 बार उन लोगों ने आक्रमण किया। मगर उसी के साथ साथ आप ये देखते हैं कि भगवान के ऐसे भी भक्त हुए हैं जो सभी पंथों में से। तो भगवान सभी का समावेश है और वो जगत के नाथ है। वो दुनिया के एक दक्षिण पूर्वी कोने पर, दुनिया का दक्षिण पूर्वी कोना है पुरी, और वहां पर वो खड़े हैं और सारी लीलाएं देख रहे हैं। और जो जो लीलाएं होती हैं वो आपको अंदर ग्रहण करते चले जाते हैं। इसलिए आप देखिए भगवान के हाथ और पैर नहीं, ये उनका निराकार होने का एक तात्पर्य है। भगवान की आंखें हैं, भगवान के हैं, और कमर के नीचे उनका भाग नहीं है, सारा गोल्ड पिंड है। तो उनकी जो प्रतिमा भी है, उनका जो अर्चा विग्रह भी है, उसमें निराकार और साकार दोनों का समावेश है। क्योंकि भगवान जो है, ऑलमाइटी जो है, वो निराकार और साकार दोनों भी है। आप उनको किसी भी रूप में उनकी आप स्तुति कर सकते हैं, उनकी आप पूजा कर सकते हैं। आप निराकार मान लें तो वो निराकार है, आप साकार मान ले तो साकार है। कहते हैं ना, मान लो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। तो ये यहां से शुरू होता है। और इतने प्रेम से वो सभी को अपने अपने पास बुलाते हैं, दोनों हाथ इस तरीके से उन्होंने खोल कर रखे हुए। कहाँ ऐसी आपको प्रतिमा दिखाई देगी जहां भगवान ने ऐसे आलिंगन करने के लिए अपने भक्तों के लिए ऐसे हाथ निकाला हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं किसी ने सोच करके ऐसा बना दिया। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती कि मेरी प्रतिमा ऐसी बने, तब तक वो धरती पर उसकी प्रतिमा वैसे नहीं बन सकती। और इस प्रतिमा का जो निर्माण है वो स्वयं विश्वकर्मा ने किया, जो देवताओं के मूर्तिकार है, शिल्पकार है। और कहते हैं कि वो जो विश्वकर्मा थे वो स्वयं परम ब्रह्म ही थे। उन्होंने स्वयं आकर के विश्वकर्मा के रूप में अपने अर्चा विग्रह का निर्माण किया। तो ये तो अब जो दूसरे पंथों से भगवान के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, उनके ऊपर जो प्रभाव है, उसको मैंने दर्शाया। अब हम आते हैं जो अब उसके बाद, जब गुप्ता पीरियड के बाद 500 साल तक बुद्धिज्म का प्रभाव कलिंगा पे था, और भी निराकार उसको पद्धति के हैं, मगर उन्होंने भगवान की पूरी जो अष्टकम है उसको साकार पद्धति में उसकी उसकी रचना की है। बहुत ही शुभ है। आज नहीं गा सकता हूं, नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान का की वो स्तुति करना। तो अब मैं आप लोगों को एक दो चार छोटी जो कथाएं हैं जो वेद में है, पुराण में है, उसके बारे में जरा बताऊं कि भगवान का
क्योंकि ये तो बुद्धिस्ट और जैनिज्म के इन्फ्लुएंस हो गए। मगर भगवान का ओरिजिन क्या है, मतलब प्रोबेबल ओरिजिन, कोई भगवान का ओरिजिन बता नहीं सकता है, मगर वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार ओरिजिन क्या है। तो ऋषि लोमासा कहते हैं युधिष्ठिर को, अज्ञातवास के समय उनकी, जब वो वन में भटक रहे थे पांचों पांडव, तो ऋषि लोमासा कहते हैं कि एक ब्रह्म वन है कलिंगा में, जहां ऋषि मुनि अपनी ध्यान में लीन है, और तुम वहां जाओ, वहां जाओ, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा यज्ञ कर रहे थे, और उन्होंने, और वो यज्ञ विश्वकर्मा उनसे करवा रहे, और उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अपने गुरु कश्यप को धरती का दान कर दिया। जब धरती का दान कर दिया, तो धरती जो है वो नाराज हो गई, और नाराज हो गई, और वो एकदम, जिसको हम क्षीर सागर कहते हैं, क्षीर सागर की गहराई में चली गई। तो उस समय ऋषि कश्यप ने धरती को अपने हाथों में रोका, और उनको, उनकी स्तुति की, और उनको मनाया। और जब मनाया, और फिर जब धरती, जब भूमि जो ऊपर आई, तो ये जो हिस्सा है जिसको हम नीलाद्री पर्वत कहते हैं, या ये जो हम पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं, सबसे पहले ये ऊपर आया समुद्र से। और क्योंकि ये समुद्र से ये भूमि निकली, इसीलिए इसे श्रीनिवास कहते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी। तो ये जो भूमि का जो एक हिस्सा है, खंड है, ये श्रीनिवास है, ये महालक्ष्मी का निवास है। और क्योंकि यज्ञ के दौरान ये भूमि की उत्पत्ति हुई है अग्नि और सूर्य से, तो, और आपको ये मालूम होगा कि यज्ञ में यज्ञ पुरुष कौन है, वो विष्णु है। तो ये जो श्रीनिवास है, इस जगह पर महालक्ष्मी और विष्णु का यूनियन हुआ है। इसलिए जगन्नाथ रूप में भगवान जो है, उनको, उनकी जो पत्नी है वो महालक्ष्मी। तो एक बात तो ये हुई। इस तरीके से जो भूखंड ऊपर आया, तो बोले कि इस आध्यात्मिक घटना को अपने ध्यान में रखकर तुम स्तुति करो युधिष्ठिर। दूसरी बात जब आती है कि हर काल में जब हर कल्प होता है, जिसमें चारों युग आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो भगवान अलग अलग, थोड़ी उनके लीलाओं में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। कभी भगवान कल्प वृक्ष के रूप में समुद्र से तैरते हुए पुरी पर आते हैं, कभी वो जो वृक्ष है वो वहां दिखता है, और उसको इंद्रद्युम्न जो है वो कुल्हाड़ी से काटते हैं। अलग अलग तरीके से लीलाएं होती हैं, मगर मूल बात यह है कि जगन्नाथ जी की का जो अर्चा विग्रह बनता है, वो कल्प वृक्ष से बनता है, और ये कल्प वृक्ष हिंद महासागर में तैरता हुआ आता है, और वो उसकी इंद्रद्युम्न की स्तुति से वो जगन्नाथ जी इस रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ये मूल बात है कि वो कल्प वृक्ष है। और तो ये जो भगवान का अर्चा विग्रह है, ये किसी धातु का नहीं है, ये पत्थर का नहीं है। ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि भगवान का जो किसी भी देवी देवता का जो अर्चा विग्रह है वो लकड़ी का बना। सिर्फ
जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के जो अर्चा विग्रह है वही वृक्ष से बने हुए हैं। और इसमें नीम के पेड़ का ये जो वृक्ष है, जो उसकी टहनी है या उसका जो ब्रांच है, उसका इस्तेमाल होता है। अब आप ये देखेंगे कि इसके पीछे बड़ी गहन फिलॉसफी है। अगर आप वृक्ष को देखेंगे तो ये जो पूरा संसार है, जिसे हम कहते हैं कि ये पंच तत्व से बना हुआ है, ये एक्चुअली आप देखें तो ये जिसमें जिसमें वायु, एयर, वाटर, अर्थ, ईथर और फायर, ये पांचों चीज होती हैं। अगर आप लकड़ी को जलाएं तो उसमें से ये पांचों चीज निकलती, उसमें से धुआं निकलता है, वो एयर है। उसमें से वाटर वेपर भी निकलता है, तो उसमें फायर तो है ही जब जलती है तो। और जब वो राख बन जाती है तो वो धरती में समा जाती है, तो राख जो है वो धरती का अंश है। और जिसको हम ईथर कहते हैं, वो आप जानेंगे कि हर एटम के बीच में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो जगह होती है उसमें ईथर होता है, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो। तो लकड़ी में वो पांचों तत्व हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। और शायद इसलिए हमें लकड़ी से हमारी हमारी भी अंत्येष्टि जो है, हमारा भी जो लास्ट राइट होता है वो लकड़ी से इसीलिए होता है। बड़ी गहन फिलॉसफी है कि भगवान जगन्नाथ का अर्चा विग्रह जो है वो लकड़ी से क्यों बना होता है। अब आप एक दूसरी कथा ये है कि एक बार जब प्रलय हो गया तो जल थल एक हो गया था, तो मार्कंड ऋषि, जो आप जानते हैं कि वो भी एक अजर अमर हैं, उनको भी आशीर्वाद मिला है मार्कंड ऋषि को, तो उनकी मृत्यु नहीं होती है और वो तैरते 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 हुए इस भूखंड पे आते हैं। और वो देखते हैं कि ये कैसी जगह है जहां पर एक कल्प वृक्ष जो है वो हिल भी नहीं रहा है, इतनी तेज हवा चल रही है हर जगह, और ये बिल्कुल स्थिर है और इसके पत्ते भी बिल्कुल ना उजड़े हैं, एकदम फला फूला हुआ वृक्ष है। तो वो तैरते हुए मार्कंड ऋषि इस कल्प वृक्ष के पास आते हैं। तब उनको एक आवाज सुनाई देती है, आओ मेरे पुत्र, मेरे पास आओ और यहां आकर तुम आराम कर लो। तब उन्होंने ध्यान से देखा कि उस कल्प वृक्ष में विष्णु की छवि समाई और नीचे महालक्ष्मी जो देवी बैठी हुई हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैंने कभी ये चीज पढ़ी नहीं थी। जब मैंने भंडीरा ट्री, जो मेरा थिएटर ग्रुप है, उसका उसका जो मैंने लोगो बनाया था, मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था। मुझे एक समझ में आया कि ये ट्री में बनाया जाए। आप मेरे भंडीरा ट्री का लोगो आप देखेंगे तो उसमें ये यही चीज बनी हुई है। और ये कैसे हुई है उस समय ना मुझे ज्ञान था ना मेरे आर्टिस्ट को ज्ञान था, मगर एग्जैक्टली वही चीज बनी हुई। अभी मैं कैसे आपको दिखाऊं भंडीरा ट्री का लोगो, बताऊंगा बाद में। तो वो बोलते हैं कि आओ मेरी शरण में आओ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो। तो मार्कंडे ऋषि वहां जाकर विश्राम करते हैं और भगवान से बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया हूं, मैं बिल्कुल हार गया हूं और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। मुझे ये अजर अमर होने का आशीर्वाद तो मिल गया कि मैं 7 कल्प तक मैं जीवित रहूंगा, मैं बड़ा ही परेशान हो गया हूं। तो उन्होंने बोला कि तुमने बहुत तपस्या की मगर मेरी स्तुति नहीं की, इसलिए तुम्हें ये आशीर्वाद तो मिल गया मगर तुम्हें ये विश्राम नहीं मिल रहा है, तुम परेशान हो अभी भी। तो वो बोलते हैं कि जाओ इस वृक्ष के ऊपर जाओ और देखो वहां एक बालक। तो उन्होंने देखा कि तो एक बालक है जो अपने मुंह में दाहिने पैर का अंगूठा लिए, जिसको हम बाल मुकुंद का स्वरूप कहते हैं, वो बाल मुकुंद के स्वरूप को अंगूठे में लिए हुए कल्प वृक्ष के पत्ते पर लेटा हुआ है। तो फिर उनको आवाज सुनाई देती कि जाओ उसके मुंह में तुम प्रवेश करो।
तो बोले ये इतना छोटा बालक है और मैं इसके मुंह में कैसे प्रवेश करूं। मगर उनको कहा गया तो उन्होंने, जैसे वो प्रवेश उस तरफ गए तो वो प्रवेश कर गए उस मुंह के अंदर, बालक के अंदर चले गए। और बालक के अंदर गए और उन्होंने देखा कि पूरी सृष्टि जो है उस बालक के पेट में, बालक के उदर में समाई हुई। पूरी ब्रह्मा की पूरी सृष्टि और सारे देवी देवता जितने, सब, सारे नगर, स्वर्ग, सभी वहां समाये हुए। और मगर उनको उस उदर का कोई और छोर नहीं मिला। उसे तो इस तरफ से, मगर इसका अंत किधर है वो नहीं मिला। और वो घूमते हुए वापस आ गए और उन्होंने फिर भगवान को नमस्कार किया। और तब वो समझ में उन्हें आया, मार्कंडे ऋषि को, कि जब प्रलय आता है तो भगवान अपने ही उदर में पूरी सृष्टि को समा लेते। एक ही श्वास में भगवान पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं और एक ही श्वास से पूरी सृष्टि को अपने भीतर खींच लेते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तुमको मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि जब वापस सृष्टि का निर्माण होगा तब तुम्हारे लिए यहाँ पे एक स्थान बनाया जाएगा और तुम अमर हो जाओगे। 7 कल्प, पहले उन्हें 7 कल्प तक जीवित रहने का आशीर्वाद था, अब तुम हमेशा ही अजर अमर हो जाओ, चिरंजीवी हो जाओगे। तो उन्होंने भगवान की वो, अब आप पुरी में देखेंगे कि मार्कंडे ऋषि का आश्रम, ये इसके उपरांत ही ये कथा बनती। अब हम जब भगवान के स्तुति में जाएंगे कि भगवान की जो वहां पर कैसे प्रादुर्भाव हुआ, तो एक बड़ी जो कथा है जो हमेशा से चली आ रही है और पुराणों में भी, स्कंद पुराण में भी है, और वो ये है कि एक राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न, चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराज इंद्रद्युम्न। और वो उज्जैन के, उनकी राजधानी थी, मालवा क्षेत्र के थे, उज्जैन उनकी राजधानी थी। और उन्हें एक दिन जब उन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया, 72 राजा पूरे विश्व के उनके अधीन थे, तब भी वो संतुष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने अपने असंतुष्टि का कारण समझना चाहा और उन्हें ये समझ में आया कि जब तक मैं भगवान को अपने आंखों से, इन नेत्रों से नहीं देख लेता, तब तक मेरा ये जीवन जो है वो सफल नहीं होगा। मैंने जितनी भी ये भौतिक सुख मैंने ग्रहण किए हैं, इनको जीता है, जो ये है, ये सब क्षण भंगुर है। मुझे भगवान को अपने नेत्रों से देखना है। और इस अभिलाषा से उन्होंने एक सभा आयोजित करवाई और वहां पर किसी एक तीर्थ यात्री ने आकर के बताया कि भगवान जो है वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में, जो आपके राज्य के पूर्वी किनारे पे है, जिसको आप उदर क्षेत्र कहते हैं या उड़ीसा कह लेते हैं आज में, वहां है। और वहां भगवान नील माधव रूप में स्थित है। वहां एक रोहिणी कुंड भी है, जिसके मात्र जल के स्पर्श से मानव को, मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। तो हमने तो ये बात को अपने राजा ने अपने पुरोहित से कहा कि ठीक है, तो फिर नील माधव जो है उनकी खोज के लिए आप निकले। और वो, उनका जो पुरोहित है विद्यापति, वो खोज के लिए निकलता है और उसे नीलाद्रि पर्वत में नील माधव अर्चा विग्रह, जो नीले पत्थर से, आप कह सकते हैं नील मणि से बना होता है और 81 अंगुल ऊंचा होता है, मात्र 81 अंगुल ऊंचा होता है। मगर उसका प्रभाव उस अर्चा विग्रह का ऐसा था कि उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने भगवान के दर्शन कर लिए। वो वहां से आता है और उसने आकर के भगवान वो देखता है, बताता है राजा को कि मैंने ऐसे ऐसे अर्चा विग्रह का दर्शन किया है कि लगता है जैसे साक्षात भगवान वहां,
तो और मेरी ये चीजें मुझे यहाँ वहां पर महसूस हुई है। इसलिए अगर आपको भगवान के साक्षात दर्शन अपनी आंखों से करना है तो आप कलिंगा चले, और वहां आपको नीलाद्रि पर्वत पर स्थित नील माधव के दर्शन होने से ही आपकी आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। तो महाराज इंद्रद्युम्न ना सिर्फ अपने को, पूरी अपनी प्रजा को लेकर के वहां चलेगा और बोले कि मैं वहां नगर बसाऊंगा और मैं वहां रहूंगा और भगवान की स्तुति करूंगा और अपना संपूर्ण भगवान के चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है वो क्षण भंगुर, उनका कोई अस्तित्व नहीं, वो आज है वो कल नहीं। और जब मगर खेद की बात यह है कि जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचते हैं तो नील माधव जो है वो वहां से गायब हो जाते हैं, तो अंतर्धान हो जाते हैं। और भगवान और राजा जो है वो मायूस हो जाता है, वो टूट जाता है कि जिनके दर्शन के लिए मैं इतनी दूर से आया, वो भगवान मुझे बुलाकर क्यों वहां से अंतर्धान हो गए। और फिर वो स्तुति करने लगते हैं, और स्तुति करते करते उन्हें फिर आकाशवाणी होती है कि मैं जल्द ही एक दिव्य काष्ठ के रूप में इस समुद्र के तट पर आऊंगा, बाकी मुहान के समुद्र तट पे, बाकी मुहान पुरी से ही 2 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पर आऊंगा और तुम्हें मैं अपना दर्शन दूंगा। अब जब वहां पे वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वाकई कुछ दिनों के बाद एक दिव्य काष्ठ जो है, उसकी ऊर्जा इतनी अच्छी और इतनी है कि वो वहां से तैरते हुए आ रहा है। और जब वो किनारे पे आता है तो मगर देखते कोई उसे निकाल नहीं पा रहा। जब निकाल नहीं पा रहा है तो फिर वो हाथी लग गए, सब लग गए, तब उन्हें लगा कि नहीं, भगवान जो है अपने भक्तों द्वारा ही निकाले जा सकेंगे। तो फिर वो विद्यापति और जो उनका पहला नील माधव का जो पुजारी था विश्वावसु, उनको बोलते हैं कि आप इनको अपने कांधे पे उठा लो। तो जो भगवान का जो कल्प वृक्ष, जो हाथी उठा नहीं पा रहे थे, हाथी नहीं खींच पा रहे थे, वो बड़ी ही सहजता से एक पुरोहित और एक विश्वावसु ने अपने कंधे पर विराजमान कर दिया। तो ये लीला है भगवान कि अगर आप प्रेम से भगवान को चाहेंगे तो भगवान आपके साथ एकदम फूल के समान होकर के आपके साथ चल दे, और नहीं तो आप हाथी लगा ले, कुछ भी लगा ले, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कई बार हुआ। ऐसा जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा निकल रही थी, चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे, तो अचानक भगवान का रथ रुक जाता है और राजा ने हाथी घोड़े सब लगवा दिए और मगर रथ नहीं खींचा गया। फिर वहां चैतन्य महाप्रभु आते हैं और उन्होंने सिर्फ अपने माथे से उस रथ को लगाया और वो रथ आगे बढ़ने लगा। और उस समय फिर लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के पैरों को छुआ। ये लीला भगवान ने की ताकि उनके जो भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु, उनको ये आदर सत्कार मिल सके। भगवान ये लीला करते हैं, जैसा उन्होंने भीष्म पितामह के साथ लीला की थी। भीष्म पितामह ने बोला था कि मैं केशव, मैं आपसे अस्त्र उठवा दूंगा। तो भगवान ने बोला कि, और भगवान ने क्या वचन दिया था कृष्ण ने, कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मगर भगवान इतने अपने भक्तों के प्रति इतने उदार हैं कि अब या तो भीष्म पितामह की बात रह जाती या श्री कृष्ण की बात रह जाती। और भीष्म पितामह को हम जानते हैं कि उन्हें भीष्म प्रतिज्ञा करने के लिए उनका नाम भीष्म पितामह दिया गया। तो अगर भीष्म पितामह जो मेरा इतना इतना भक्त है, अगर उसकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो मुझे बड़ा खेद होगा। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसी लीला की जिसमें अर्जुन बहुत ही संकट में आ गया था और भीष्म पितामह उनके ऊपर बांध चढ़ाने वाले थे कि कृष्ण ने एक रथ का पहिया निकाला और उससे सुदर्शन चक्र बना लिया। तो भीष्म पितामह ने बोला कि देखा प्रभु, मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको अस्त्र उठवा दूंगा। तो भगवान हार करके भी अपने भक्तों को जीत दिला देते हैं, विजेता बना देते हैं। और यही चीज उन्होंने यहां भी की, और यही चीज उन्होंने
विश्वावसु और विद्यापति के साथ किया कि मुझे तुम प्रेम से जीत सकते हो, सिर्फ प्रेम और भक्ति से जीत सकते हो। तो उसके बाद जब वो वहां लेकर के आते हैं उस दिव्य काष्ठ को, तो अब उसकी उससे अर्चा विग्रह का निर्माण कैसा होगा। तो भाई सारे शिल्पकार आते हैं नगर के, मगर कोई एक तिनका भी उस दिव्य काष्ठ से उकेर नहीं पा रहा। तो बड़ी चिंता में इंद्रद्युम्न हो गए कि दिव्य काष्ठ तो आ गया, मगर किसी भी शिल्पकार की जो छैनी है वो इस दिव्य काष्ठ पर नहीं चल रही। तो क्या करे, तभी उस समय विश्वकर्मा आते हैं और बड़े ही वृद्ध से दुर्बल शरीर लेकर के भगवान आते हैं और बोलते हैं मैं इसका निर्माण करूंगा। तो बोले आप कर लेंगे? बोले हाँ। तो बोले मुझे इसका प्रमाण चाहिए। तो बोलते हैं मैं देता हूँ। तो छेनी लगाते हैं और जैसे ही छेनी उस पे मारते हैं ओम का गुंजार होता है, टन का आवाज नहीं आती, ओम का गुंजार। तब वो समझ जाते हैं कि ये इस व्यक्ति में, ये जो शिल्पकार है, इसमें कोई दिव्य बात है और ये कर लेंगे। तो उन्होंने अपने राजा को बोला कि मुझे इसके लिए 21 दिनों की आवश्यकता है और मैं ये एकांत में करूँ। तो राजा ने बोला जैसी आपकी इच्छा, मगर आपके खान पान की व्यवस्था क्या होगी? तो बोला ना मैं खाऊंगा ना पीऊंगा, ये 21 दिनों तक मैं जब तक अपना कार्य पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं इस कार्यशाला में बंद रहूंगा, और जब काम भगवान का अर्चा विग्रह का निर्माण हो जाएगा तभी मैं बाहर आऊंगा। मगर होनी को देखी भगवान की लीला। अचानक 15वें दिन के बाद, 17वें दिन के बाद भगवान उसकी छेनी हथौड़ी की आवाज आनी बंद हो जाती है और महारानी गुंडीचा जो इंद्रद्युम्न की पत्नी है वो घबरा जाती, बोली कि कहीं वो वृद्ध शिल्पकार जो है उन्होंने बिना खाए पिए, बिना अन्न ग्रहण किए, बिना जल ग्रहण किए प्राण तो नहीं त्याग दिए। और इस तरीके से वो इंद्रद्युम्न को मजबूर कर देती है अपने वचन को तोड़ने के लिए। और जैसे ही इंद्रद्युम्न अपने उसका विश्वकर्मा के कार्यशाला का द्वार खोलते हैं तो देखते हैं कि वो अनंत महारन जो विश्वकर्मा थे, वो जो शिल्पकार थे, वो तो वहां नहीं है। और भगवान की जो अर्चा विग्रह है वो उसके हाथ और पैर नहीं है। इसका मतलब वो भगवान का अर्चा विग्रह जो है वो अपूर्ण है। और वो बड़े ही आत्मग्लानि में चले जाते हैं और अपने प्राण लेने की कोशिश करते हैं। तभी उस समय नारद मुनि आते हैं और बोलते हैं कि ये भगवान की लीला, भगवान इसी रूप में अवतरित होना चाहते थे। और ऐसी लीला उन्होंने द्वारका में भी की थी। और वो उस लीला का वर्णन करते हैं कि जब माता रोहिणी द्वारका में भगवान की 16,108 रानियों को वृंदावन की लीलाएं सुना रही थी, तो उन्होंने कहा था सुभद्रा को कि तुम द्वार पर खड़ी हो जाओ, क्योंकि जब मैं लीलाएं सुनाऊंगी, अगर ये कृष्ण और बलराम सुन लेंगे तो वो बड़े दुखी हो जाएंगे, इसलिए तुम वहां खड़ी हो जाओ और देखना कि कोई ना आए। तो वो द्वारपाल की तरह खड़ी तो हो गई सुभद्रा। मेरी लीलाओं का वर्णन हो रहा है रोहिणी माता के द्वारा, तो वहां चले आते हैं। मगर उस लीला के दौरान सुभद्रा भी जो इतनी लीन हो गई, उसमें इतनी मगन हो गई कि उनका ध्यान ही नहीं रहा कि कब कृष्ण और बलराम वहां के खड़े हो गए। और उनके अंदर जो वो दुख आया, जो वो जिस तरीके से वो अपने भगवान की वहां पे जो उनकी स्थिति उन्होंने जानी कि मेरे आने के बाद वृंदावन में क्या हो रहा है, तो उनके होंठ लटक गए, उनकी आंखें जो है वो बड़ी बड़ी हो गई और उनके हाथ और पैर गल गए, जिसको आज हम जगन्नाथ रूप में देखते हैं। तो ये सबसे, अगर अगर आप कहें तो भगवान ने ये जो जगन्नाथ रूप है, ये सबसे पहले 155.04 ट्रिलियन ईयर्स पहले लिया था, जब इंद्रद्युम्न के साथ ये घटना हुई थी। मगर 155 ट्रिलियन ईयर्स मतलब महासंख सालों पहले भगवान ने जगन्नाथ रूप लिया था। मगर अगर हाल फिलहाल की हिस्ट्री में देखें, इतिहास में देखें, तो करीब 5,500 साल पहले द्वारका में भगवान ने जगन्नाथ रूप लिया था, जब माता रोहिणी भगवान की ये लीला कह। तो अब हमारी ये यहाँ पर एक छोटी सी एक भगवान से प्रार्थना भी है, वो हमेशा मैं करता हूँ कि भगवान का एक जगन्नाथ मंदिर जो है
वो हमारा जो एक ट्रस्ट अभी खुल रहा है, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री जगन्नाथ जगन, उसके हम द्वारका में भगवान का एक मंदिर का निर्माण करें। ये हमारी प्रार्थना है। जब मंजुला दीदी यहाँ है, वो भी ट्रस्टी हैं। तो अब ये देखिए कैसे होता है, ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो ये जो है, ये भगवान के अवतरण की अनेक कहानियां हैं। हर कल्प में थोड़ी थोड़ी कहानी भगवान की चेंज हो जाती है। इसीलिए जब आप पद्म पुराण पढ़ेंगे, जब आप ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे, जब आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, थोड़ी थोड़ी भिन्नता मिलेगी। मगर एक चीज जो है वो कॉमन ये है कि भगवान के अर्चा विग्रह का निर्माण जो होता है वो वृक्ष से होता है, कल्प वृक्ष से होता है। ये आपको, और उसमें जो और जिनकी स्तुति से वो भगवान अवतरित होते हैं पृथ्वी पर, वो है इंद्रद्युम्न राजा, और उनका पुरोहित विद्यापति है। और एक जो हमेशा से नील माधव की जो पूजा करते आता है, वो है शबर राज विश्वावसु, और महारानी गुंडिचा है। तो ये कुछ चीजें जो हैं वो हमेशा रहती हैं, मगर थोड़ी मोड़ी भिन्नता हर कल्प में होती रहती है। ये आप इसीलिए कभी आप पढ़ें अलग अलग पुराणों में, तो आपको थोड़ी थोड़ी कहानी अलग अलग पढ़ने में आएगी, मगर उससे विचलित नहीं होना कि कोई भी चीज गलत नहीं है। कभी भगवान ने ऐसी लीला की है, कभी इतनी लीला की है, मगर दो चार चीजें जो है वो बिल्कुल स्थित है। वो ये है कि भगवान के अर्चा विग्रह का निर्माण वृक्ष से ही होता है, कल्प वृक्ष से ही होता है। अब हम आपको ये उस पे ले जाते हैं कि हमारा जो ये सनातन धर्म है वो कितना साइंटिफिक है। कि भगवान की जब पूजा होती है, तो पूजा करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तो आप देखेंगे कि ये जो संपूर्ण जगन्नाथ मंदिर है, इसकी रचना महालक्ष्मी यंत्र के रूप में हुई, और जो भगवान का जो रथ भी बनता है वो भी महालक्ष्मी यंत्र का रूप होता है उसमें। अब जब हमने कहा कि यंत्र, मंत्र और तंत्र, तो इसमें यंत्र क्या है? जो भगवान का जो जगन्नाथ जी का जो अर्चा विग्रह है, वो तारा यंत्र पे स्थित है। और जो बलभद्र जी का जो अर्चा विग्रह है, वो ब्रह्म यंत्र पर स्थित है। और जो सुभद्रा मां का जो है, वो काली यंत्र पे स्थित। तो ये होगा यंत्र। अब मंत्र क्या है? मंत्र हमको मिलते हैं गुरुओं से। तो सबसे बड़े गुरु कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और सभी के बीज मंत्र है। जगन्नाथ जी का जो बीज मंत्र है वो ओम। इसी तरीके से सुभद्रा जी का बीज मंत्र है, और उसी तरीके से बलभद्र जी का भी बीज मंत्र है। तो जो ये एक बड़ी ही यूनिक और अद्भुत बात है कि किसी भी मंदिर में शक्ति, विष्णु और शिवा की एक ही वेदी पे पूजा नहीं होती, सिर्फ जगन्नाथ जी के रूप उसमें होती है, जिसमें जगन्नाथ जो है वो विष्णु का स्वरूप है, सुभद्रा जो है वो ब्रह्मा का स्वरूप है। मगर क्योंकि कलयुग में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, इसलिए उनकी शक्ति जो है सुभद्रा, उनकी पूजा होती है उनके स्थान पर, और बलभद्र जो है वो शिव के रूप में। तो ये एक बहुत ही अद्भुत रचना है, एक अद्भुत मंदिर है, एक अद्भुत वेदी है, जिसमें तीनों जो पंथ हैं
वैष्णव, शाक्त और शैव, ये तीनों अपने अपने बीज मंत्र से अपने अपने गुरुओं की पूजा कर रहे हैं। और तंत्र कौन हुआ? तंत्र तो पुजारी हो गया, क्योंकि यंत्र को चलाने वाला कौन है? तंत्र। ये तो तंत्र पुजारी हो गया जो मंत्र के द्वारा यंत्र को चला रहा। तो आप देखिए इसमें वैदिक और तांत्रिक दोनों पद्धति का समावेश है। इसको लोकाचार पद्धति कहते हैं, जिसमें बुद्धिज्म की भी पद्धति है। बुद्धिज्म कहते हैं कि ये रथ यात्रा है, ये हमारे हम जो यात्रा निकालते थे उसका ये रिफ्लेक्शन। तो उस समय और जो कई ऐसी भगवान की स्तुतियां हैं, जो विश्वावसु जो भील था, जो नील माधव की सेवा करता था, उसको आप प्रिमिटिविज्म कह सकते हैं। जो आदिकाल से जो भगवान की जिस तरीके से पूजा होती आ रही थी, उसका भी उसमें समावेश है। तो अगर जब आप वहां जाएंगे तो आपको ये जो भगवान का आज जो अनासरा का समय चल रहा है, इसमें भगवान को की जो सेवाएं हैं वो दैतापति करते हैं। दैतापति कौन है? दैतापति वो है जो उस विश्वावसु के कुल से, और सुयर जो है वो भगवान की निजी सेवाएं करते हैं। भगवान की पूजा करना, भगवान के निजी सेवाएं पूरे दिन जो करते हैं वो सुयर हैं, और वो विद्यापति के वंशज। सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि इंद्रद्युम्न ने कहा भगवान से, जब भगवान ने बोला कि अब तुम, ब्रह्मा जी ने बोला कि तुमने इतना इतना भव्य मंदिर बनवा दिया है जगन्नाथ जी का, तो तुम भी वर मांगो। तो बोले कि मैं ये वर मांगता हूं कि मेरी कोई संतान ना, मेरी कोई संतान इसलिए नहीं हो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस मंदिर के ऊपर कोई भी अपना आधिपत्य, मेरी संतान में से, मेरे कुल में से कोई भी इस पर अपना अधिकार बनाए। देखिए, और इसलिए जब उनके संतान नहीं हुई तो आज भी ये प्रथा चली आ रही है कि जगन्नाथ जी और महारानी गुंडीचा, उनकी पत्नी का, हर साल उनकी जो ये जो हम करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, क्या कहते हैं, श्राद्ध सर, श्राद्ध। हाँ, जो श्राद्ध करते हैं, राइट, जो ये श्राद्ध करते हैं, ये मंदिर के जो सेवक हैं वो जगन्नाथ जी के बिहाफ में महारानी गुंडीचा और राजा इंद्रद्युम्न का श्राद्ध करते हैं। क्योंकि भगवान ने बोला, जब इसने अब हमें इसने संतान नहीं मांगी, उसके पीछे इसका उद्देश्य इतना पवित्र है, तो मैं ही इनको अपना 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 माता पिता मान लेता, और वो उनके पुत्र बन करके राजा इंद्रद्युम्न और महारानी गुंडीचा का श्राद्ध करते हैं। देखिए कितनी सुंदर कल्पना और कितनी सुंदर बात है। कितने सहज हो जाते हैं, अपने आप अपने पुत्र को अपना पिता मान लेते हैं, क्योंकि हम तो सब उनके पुत्र हैं। मगर वो बोलते नहीं, इसने बोला कि मैं संतान नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं इनको अपना माता पिता मानूंगा, और मैं हर वर्ष उनका जो श्राद्ध वो करते हैं जगन्नाथ। अब अब देखिए भगवान की एक और लीला बड़ी ही अद्भुत है। आप लोगों को ये पता है या नहीं मालूम नहीं, भगवान जिस तरीके से आज बीमार पड़े हुए हैं एक मनुष्य की तरह, उसी तरह भगवान का टूथब्रश होता है हर सवेरे, समय समय पर उनके बाल कटते हैं, उनके नाखून कटते हैं, उनकी दाढ़ी बनती है। और इसी तरीके से भगवान जो है वो अभी क्या, उनको मतलब ही ऑल्सो डाइज। भगवान हर 8, 9, 11, 12 या 17 या 19 सालों के बाद एक
विशेष पूजा होती है जिसको नवा कलेवर कहते हैं। उसमें भगवान के अर्चा विग्रह को, पुराने अर्चा विग्रह को नए अर्चा विग्रह से बदल दिया जाता है, और पुराने अर्चा विग्रह से भगवान के अंदर जो ब्रह्म पदार्थ है वो निकाल करके नए अर्चा विग्रह में डाल देते। तो भगवान की इस लीला का मतलब यह है कि मैं, ठीक है, मैं परम ब्रह्म हूं, मैं तुम लोगों का भगवान हूं, मगर मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, मैं तुमसे अलग नहीं। उनकी इस लीला का अर्थ यही है, मैं जीव आत्मा की तरह हूं, और वो जीव आत्मा की तरह ही हाँ सारी चीजें करते हैं। कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि अरे धनंजय जी, इसमें क्यों इतना दर्शन में ऐसा टाइम लगता है, क्यों नहीं ये तिरुपति बालाजी जैसा हो जाता कि हमें 7:45 का टाइम दिया हो, फिर 8:15 का टाइम किसी और का हो, 8 बजे का टाइम किसी और हम उसी समय पर पहुंच जाए। मैंने उनको बोला कि भगवान का ऐसा कोई भी रूप ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान इस समय खाएंगे। मैंने भगवान के मंदिर को सुबह 4:30-5 बजे बंद होते देखा, और सुबह फिर वापस 6:30 बजे खुलते देखा। आप विश्वास कीजिए, 2:30 बजे मंदिर होता है बंद। नॉर्मली मैंने भगवान के मंदिर को 2:30 से 3 बजे रात में बंद होते देखा है, और सुबह 4:30 से 5 के बीच में खुलते देखा है। भगवान जगन्नाथ का कोई आप बोल ही नहीं सकते। वो बोलते हैं कि इस समय मैं नाश्ता करूंगा, तो वो नाश्ता करेंगे। रात में बोलेंगे कि मेरे को तो नाश्ता, मुझे तो बस ये चाहिए, नाश्ते वाला जो उनका भोग है वो। उनका जो बोलेंगे कि संध्या के समय बोल देंगे कि नहीं, मुझे तो बस दिन का खाना चाहिए। आपको बनाना पड़ेगा। अब लोग बोलते हैं कि ये कैसे होता है। मैं तो इस बात को समझ गया, अगर भगवान मुझे बोल सकते हैं कि देखो मैं तुम्हारे घर में जगन्नाथ रूप में आया हूं, तो हर समय जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान को भोग खिलाता है, तो भगवान उसके हृदय में ये सारी बातें डालते। आप भगवान से जुड़ के देखिए, एक एक चीजें भगवान आपको कह दे। आपके घर के देवी देवता आपको बता देंगे कि मुझे आज ये चाहिए। अगर आप उनको भोग लगाते हैं तो बता देंगे कि आज मुझे ये चाहिए, हलवा बना के खिलाओ, या ये नमकीन बना के खिलाओ, या ये रसगुल्ला लेके आओ, देखो वो वहां से ये पी रहा है, मुझे भी ला करके दो, मुझे कैसे भूल गए। तो जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो वो एक अर्चा विग्रह नहीं रहता, वो साक्षात भगवान वहां पर आपके घर में उपस्थित रहते हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब आप वो विश्वास कर लेंगे तो भगवान वहां वहां भगवान का अवतरण हो जाएगा, भगवान अवतरित हो जाएंगे आपके घर। जब आप विश्वास कर लेंगे, नहीं विश्वास करेंगे तो बोलेंगे चलो ये मुझे मूर्ति की तरह पूज रहा है, ऐसे मूर्ति की तरह रहे। बट जिस दिन आपने भगवान को बोले नहीं, ये तो मेरे लड्डू गोपाल हैं, जब तक मैं इनको सुलाऊंगा नहीं, ठीक से इनके लिए इनको खिलाऊंगा नहीं, जब तक मैं इनकी सेवा नहीं करूंगा, तब तक इनको ये सोएंगे नहीं, तब तक वो नहीं होता। तब तक वो सोएंगे भी नहीं, आपको उठा देंगे। अरे आज आज तुमने ये सुनाया नहीं, और उसके बिना तुम सो गए। आपको एक अंदर हलचल हो जाएगी। तो हम जो है, मेरी पत्नी जब भी जाती हैं, कहीं जाती हैं, वो लड्डू गोपाल को लेके जाती हैं, चाहे अपने ससुर अपने मायके जाएं या कहीं भी ऐसी 2-4-5 दिन के लिए चले गए। और ये अधिकतर आप देखेंगे लड्डू गोपाल को सब लोग अपने साथ लेके घूमते हैं, क्योंकि वो जाएंगे आपके साथ और सब चीज देखना चाहेंगे। जिस रूम में आप रह रहे हैं उसमें वो रहेंगे। तो वो भाव है, और अगर भाव आपके एकदम पवित्र हैं तो उस भाव में भगवान अवतरित हो जाएंगे। तो उसी तरीके से वो जगन्नाथ जी जो है वो कह देते हैं अपने सेवकों को कि अभी मुझे ये खाना है, अभी ये नहीं खाना, अभी ये करना, ये करना। अचानक मंदिर आप बोलेंगे अरे ये मंदिर बंद हो गया, अभी तो सेवा का समय। बोला नहीं नहीं, भगवान ने बोला बंद करो, अभी 1.5 घंटा उनको आराम करना है। तो बस आराम करना है। तो 1.5 घंटे तक कोई दर्शन नहीं होंगे, फिर वापस 10:30-11 बजे दर्शन खुलेंगे, और फिर 1:30-2 बजे तक, 2:30 बजे तक उनका चंदन लागी होगा, ये होगा, लास्ट में बड़ा श्रृंगार होगा, तब भगवान सोएंगे। अब उसमें 2:30 बज जाए, 3 बज जाए, 3:30 बज जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बताइए तिरुपति बालाजी जैसा कैसे हो जाएगा? इस जगह पे नहीं हो सकता। किसी को हम टाइम दे दें कि 7:45 में आपके दर्शन हो गए, ये लीजिए टोकन, पता चला 7:45 में भगवान का मंदिर ही बंद। तो इसलिए नहीं हो सकता। तो मैंने उनको समझाया, मगर पता नहीं उनको समझ में आया कि नहीं। तो ये है भगवान की जो वैदिक, अब क्योंकि वैदिक और तांत्रिक और लोकाचार तरीके से भगवान की स्तुति हो रही है, उनकी
उपासना हो रही है, उनकी सेवा हो रही है। तो उसमें उन भगवान के, हर भगवान के बीज मंत्र हैं। वो यंत्र पर, जिस यंत्र पर बैठे हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और जो भगवान लीलाएं कर रहे हैं वो आपको मैंने बता दिया। जो उनका बेसिक मंत्र है वो है नीलाचलाय निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। तो पहली बार तो तो फिर जो जब आए शंकराचार्य जी 9th सेंचुरी में, उन्होंने वापस वैदिक संस्कृति से भगवान की उपासना, उनकी सेवा करना आरंभ करवाया। और उसके बाद फिर रामानुजाचार्य भी आए, माधवाचार्य आए, निम्बकाचार्य आए, बल्लभाचार्य आए, और उन्होंने अपने अपने मठ पुरी में बनवाए, वो भी आज आप देख सकते हैं। और सबसे पहले भगवान का नाम पुरुषोत्तम था, उसके बाद आज की डेट में जगन्नाथ हो गया। मगर जो भगवान का जो ऑफिशियल नेम है, जैसे हमारा भी ऑफिशियल नेम है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उनके ऑफिशियल नेम क्या है। बहुत सारी चीजें संगठित करके रखी हैं आप लोगों के लिए। अब जो आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये सर तो अब मैंने आप लोग को बोलूं? जी, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना था कि केवल जगन्नाथ ऐसे भगवान है जिन्हें रात में गीत गोविंद वस्त्र पहना के सुलाया जाता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आपने बिल्कुल ठीक सुना। वही मैं कह रहा हूँ कि उनको गीत गोविंद जो है, जो जयदेव की रचना है, 12th सेंचुरी में एक पोएट हुए जयदेव जी, उन्होंने रचना की है गीत गोविंद की। वो रात में वो सुनकर ही सोते हैं। और अगर भगवान को आप देखेंगे कि भगवान का जो वो वस्त्र है, उसके ऊपर गीत गोविंद लिखा रहता है, जिस जिस वस्त्र को वो पहन के सोते हैं। अगर वो वस्त्र में गीत गोविंद ना लिखा हो और किसी ने कहीं गीत गोविंद चला दिया, भगवान वहां चले जाएंगे। जी, और कहते हैं कि वृंदावन में रात में वो रास खेलने जाते हैं, इसलिए उनको पहना के मतलब श्रृंगार करके सुलाया जाता है। और सारे भगवानों का श्रृंगार उतारा जाता है शयन के वक्त। केवल जगन्नाथ ऐसे जिन्हें श्रृंगार करके ही सुलाया जाता है। जी जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने, बिल्कुल ठीक, सही बात है। धन्यवाद। जयदेव की स्तुति उनको इतनी इतनी उनको पसंद है, इतनी प्रिय है कि वो जब तक उनको नहीं सुनेंगे तब तक वो नहीं सोते। नहीं, और सर बहुत अच्छी बातें आपने सुनाई। एक्चुअली मैं गीत लिख रही हूँ इन दिनों, मुझे लिखवाया जा रहा है, लेकिन पता नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ उनकी तरफ से, भगवान की तरफ से कुछ तो ऐसा हो रहा है कि चीजें इतनी अच्छी अच्छी आती जा रही है और लाइन बनती जा रही है। मुझे लगता है कि मैं तो कवित्री हूँ सर, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं लिख कैसे रही हूँ। ये भगवान, देखिए हम सिर्फ माध्यम होते हैं। जब मैंने भी अपना ये प्ले लिखा था, जी तो जी। उसके पहले मैं कभी जगन्नाथ जी की स्तुति में नहीं कर रहा था। मुझे जगन्नाथ जी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मुझे मैं भी कभी नहीं। जगन्नाथ जी के मंदिर नहीं गया था। मेरे बिल्कुल। माता पिता उड़िया नहीं है, तो कभी जगन्नाथ संस्कृति में पैदा भी नहीं हुआ। जी जी मगर वो मैंने जब प्ले लिखा और जब प्रदर्शित किया, जी जी जी। तो पुरी के जो महंत और उनके वहां के जो लोग थे, वे हैरान हो गए कि इसमें एक त्रुटि भी नहीं, और ये आपने कैसे कर दिया। कृपा उसी की रहती है एक्चुअली। जी, तो आपकी जो ये कविता है, जो आप भजन लिख रही हैं, बस वो उनके उससे हो जाएगा। हम सिर्फ एक माध्यम। जी सर। मैंने कई बार अपने उसमें जो मैं प्ले लिखता हूँ, शुरुआत में एक दो प्ले में मैंने डायरेक्टर और राइटर के नाम से भी नहीं लिखा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ना मैं राइटर हूँ, ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना मैं प्रोड्यूसर हूँ इस प्ले का। सब कुछ वही है।
मगर फिर कुछ लोगों ने उसके ऊपर एक अपना अपना नाम चिपकाना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। जी जी जी। और सर गलत चीज तो नहीं जानी। एक्चुअली पिछले 8-10 दिन से प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उतने में मंजुला का लिंक आ गया। मैंने कहा देखो ये भगवान ने ही भेजा शायद, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं था कुछ भी। तो मंजुला को मैंने कहा मैं जानना चाहूंगी और मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे लगता है कि भगवान ने ही ये आपसे हाँ, ये बात सही है। और इसकी रचना 3-4 हफ्ते पहले हो गई थी, जब संजय मरानी जी ने मुझसे बोला कि ऐसा ऐसा देखिए, आपने शायद 1-2 हफ्ते पहले ये बात की होगी, मगर इस सेमिनार का जो डेट फिक्स होना था वो 4 हफ्ते पहले, 5 हफ्ते पहले संजय जी ने कर लिया। इसलिए तो मंजुला का उनको भी सब मालूम है कि भविष्य में क्या होने वाला है, सब कौन क्या करने वाला है, उसको कैसे मैं फिट अभी कर। आप बात कर रहे थे ना, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि वाकई भगवान कुछ चाहते हैं। मैं मंजुला को भी धन्यवाद देना चाहूंगी इसके लिए कि मुझे बहुत अच्छी चीजें मिली हैं। जी और जी, आगे हम भी सब एक कड़ी हैं, उस कड़ी में हम जुड़े हुए हैं, माध्यम बने हुए हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मेरा एक सवाल है। जी जैसे उड़ीसा से हूँ मैं तो जानता हूँ। मैं बात, मेरा माता पिता भी ओडिया है, मैं ओडिया में बात करता जी हूँ, ओडिया का मातृभाषा है। जी जी। लेकिन अब तक मेरा डाउट है कि जो 56 भोग क्या है सर? किसी ने भी क्लियर नहीं किया ये जो 56 भोग कहते हैं, और जो भोग का एक तरीका है, क्योंकि वो देखे जब तक वो रसोई खत्म हो जाते वही से शुरू हो जाते हैं पूजा। इसके पीछे कारण क्या है? और कभी कभार आप देखते हैं कि पूजा बंद हो जाती है और जो वो जो प्रसाद होता है वो सब मैंने क्या होता है उसको सब मैंने फेंक देते हैं लोग, जो पंडा है जो जो ये करने वाला। इसका पीछे कारण क्या है? कोई तो मैं होगा। देखिए, 56 भोग क्या हुआ कि एक एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, ठीक है। और 7 दिनों तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा के रखा था। तो भगवान ने 7 दिनों तक 8 प्रहर कुछ नहीं खाया। इसीलिए भगवान के भक्तों ने उसके बाद जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत रख दिया तो उनको 56 भोग खिलाए। 7 8 जा 56। वहां से 56 भोग की प्रथा शुरू हुई। इसलिए श्री कृष्ण के किसी भी रूप में जब भोग लगता है तो उनको 56 भोग लगते हैं, ठीक है। तो दूसरा सब। जी। 8 into 7, हाँ हाँ, ये राइट। अब आप दूसरा प्रश्न आपका क्या था? ये कभी कभार वो फेंक देते हैं भोग। हाँ, वो देखिए, आप जब आप अभी जगन्नाथ रथ यात्रा जाएंगे तो उसमें एक और भगवान की सेवा होती है, या नियम रख लीजिए, या एक सेवा बोल लीजिए, या एक प्रथा बोल लीजिए। वो 4 घड़े जो होते हैं वो भरे जाते हैं। जब जब बाहुड़ा यात्रा आ जाती है ना, बाहुड़ा यात्रा से भगवान वापस आ जाते हैं, तो उस घड़े में बहुत सारा मीठा पानी और हर तरीके के फल और जूसेस डाले जाते हैं, और उस घड़े को ऐसे तोड़ दिया जाता है और फेंक दिया जाता है भगवान को चढ़ाने के बाद। आप देखेंगे वो प्रथा, आप अगर आप जाते हैं पुरी, तो मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें वो उस और पूरा उस घड़े में, और बड़े बड़े घड़े होते हैं, मतलब कम से कम 4 फीट 5 फीट के वो अधरपणा कहते हैं सर, उड़िया में हाँ, अधर। अधरपणा, राइट, अधरपणा। अधरपणा क्यों करते हैं? अधरपणा करते हैं कि जितने आत्माएं जो भटक रही हैं वो भगवान के उस प्रसाद को ग्रहण करें। उसको कोई भी मनुष्य ग्रहण नहीं करता। अगर जीव जंतु ग्रहण कर ले ठीक है, मगर मेन खासकर वो भटकती हुई आत्मा जिनको भगवान की अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, या उनको उनका कहीं जन्म नहीं हुआ है, या वो दूसरे लोक में भी नहीं पहुंच पाए हैं, मतलब उनकी जो लोग जैसे अकाल मृत्यु वगैरह हो जाती है ना जिन लोगों की, या फिर उनके लोग उनका श्राद्ध नहीं कर पाते, तो वो आत्मा भटकती रहती है। तो भगवान का वो प्रसाद ग्रहण करते हैं अधरपड़ा, और उससे उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसी तरीके से जब ये जो भगवान का जो प्रसाद कहीं बच जाता है, तो आप देखेंगे पुरी में कई जगहों पर रास्ते में ऐसे वो डाल देते हैं कि अगर कोई वहां पर आत्मा विचर रही हो
तो वो ग्रहण कर ले भगवान का प्रसाद और तृप्त हो जाए। नहीं, और एक प्रथा है सर, देखिए अगर कोई अछूत वाला है, अछूत तो नहीं है उधर, कोई भी अछूत नहीं है, जो हाँ कोई मुसलमान पहुंच जाए और कुछ हो जाए तो वो भी फेंक देते हैं, उसी दिन फेंक देते हैं। और कुछ मतलब मेरे को तो याद नहीं है, बहुत बहुत बार हाँ, मैंने अगर देखा कुछ है। अपवित्र हो जाए, किसी भी कारण से अपवित्र हो जाए, तो वो तो फेंकना ही पड़ जाएगा। मगर भगवान का जो भोग है वो उसे महाप्रसाद कहते हैं, उसमें झूठा कुछ भी नहीं होता। मतलब लोग एक दूसरे का खा लेते हैं, और किसी ने हाँ, अगर, हाँ ये दूसरे, जाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी क्यों फेंक देते हैं? कोई भी प्रसाद नहीं मिलता, अमृत बाजार, ये तो आनंद बाजार में कुछ नहीं मिलता, उस दिन पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका वो कभी पीछे कभी भगवान की इच्छा से ऐसा हो जाता है। और मगर वैसे तो वहां पर हमेशा ये अपनी क्या देवी जो है, अन्नपूर्णा देवी वास करती हैं, तो कभी कुछ कमी नहीं होती है। मगर अगर कुछ भी चीज गलत हो जाती है प्रसाद में, या उस विधि में, या भगवान को भोग चढ़ाने में, तो भगवान उसका उसको बोल देंगे कि अब इसको ये चीज नहीं चढ़ेगी, ये चीज आगे नहीं जानी चाहिए, ये मेरे भक्तों को नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसी कभी कभी स्थिति बन जाती है। और सर एक पंडा जी ने मेरे को बताया, तो मैं तो उड़िया हूँ, उससे मेरे को बताया हाँ कि जब जो प्रसाद प्रिपरेशन होता है, जो अन्न दाल बारी वगैरह सब आपको मालूम होता है, ये बनने के 10 या 20 मिनट के अंदर ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो गर्म रहना चाहिए, वो उषुम रहना चाहिए। उड़िया में कहते हैं कि हाँ हाँ, उषुम। आप देखेंगे कि भगवान का जो किचन है वो हाँ, हाँ, एकदम बगल में ही है, ये बगल में। मंदिर प्रांगण में ही है। हम्म। और आपको शायद ये भी पता होगा कि वो महालक्ष्मी भगवान का भोग बनाती हैं। त्रिपुरा त्रिपुरा सुंदरी जो है वो भगवान को खिलाती हैं। और दक्षिणा काली जो है वो अग्नि जलाती हैं, है ना। तो ये तीनों हाँ, देवियां जो है भगवान के मंदिर में, भगवान के रसोई घर में प्रस्तुत रहती हैं, उपस्थित रहती हैं। और जैसे आप देखेंगे कि वो जो जिनका ये निजोग है, जिनका ये कार्य है, वो उस समय एकदम गरम गरम उठा करके ले जा रहे हैं, हांडी की हाँ, हांडी एकदम पीछे वाले हाँ, द्वार से, जहां पर भगवान विष्णु के रूप में विराजमान है, उस द्वार से अंदर ले जाते हैं। तो वो उसमें भगवान को एकदम जो तुरंत बना हुआ खाना तुरंत प्रस्तुत होता है और तुरंत मिलता है। दुनिया में कहीं भी नहीं है सर, कहीं भी नहीं है, आप कहीं भी नहीं नहीं, जाइए। इतना बड़ा किचन किसी में नहीं है। उसका पूरा एक है कि कितने कितने लोग काम करते हैं, कितनी अंगीठियां हैं, कितने चूल्हे गरम जलते हैं। गरम गरम पूजा करने वाले भगवान कोई नहीं है, यही एक मंदिर है जहाँ गरम प्रसाद ही होता बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं। इतना वर्ल्ड का सबसे बड़ा किचन है ये। नहीं, जब मैं जब गई थी तो हम लोगों के यहाँ तो एक अपने परिवार का वो था प्रोग्राम, तो सारा प्रसाद आया था वहां पर। तो दो तीन चीजें बताई, तो चम्मच का बिल्कुल यूज नहीं होता है परोसने में भी, और न खाने में। कटोरी चम्मच कुछ नहीं, वो घरों को गोल 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 डालते जाएंगे, हाथ से तो डालेंगे, और हाथ से ही खाना है। कभी भी जी वो जी। एक है ना। अब देखिएगा एक जब सर्व भी करते हैं वो लोग, जब निकाल करके प्रसाद हाँ, सब देते हैं, तो हाथ से ही निकाल के देते हैं। और हाथ से ही खाना है, नीचे बैठ के खाना है आनंद बाजार में। अच्छा, ये भी सही बात। कहते हैं कि सबसे पहले ऊपर की जो हांडी हो वो पकती है, नीचे की बाद में पकती है। नहीं, ये गलत बात। अच्छा अच्छा। ये गलत चीज फैलाई हुई है। हाँ, वही मैं भगवान का जो किचन जो है, जो मैंने देखा है और वहां के लोगों ने मुझे दिखाया भी है, जी। वो 3 त्रिकोण बने हुए होते हैं। वो 3 त्रिकोण में भगवान का चूल्हा बना होता है। तो 9 चूल्हे, 9 हांडियां एक साथ चढ़ती हैं, मगर सब एक लेवल पे है। जैसे 3 त्रिकोण आप बना लें और एक दूसरे से जोड़ लें, तो वैसे आकार में ये 3 त्रिकोण रहता है। ये ऊपर वाली जो बात है ये गलत है, ये गलत है, ये फैलाई हुई बात है, ये गलत। है। सर ये जो ऊट ऊट मिडिल में डाला जाता है ना, मैंने तो कभी गया नहीं उधर। जो ऊट है, त्रिकोण है, वही तो मेरे को मालूम है, लेकिन जो हाँ, ऊट है ना, वो सब चूल्हे के वो नीचे नीचे डाला जाता है। वो उसमें भगवान एकदम जो जो नॉर्मल तरीके से बनता है वो है। मगर अच्छा, अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां जो पानी है, जो बीचों बीच, हम्म, वो जो हम्म, मीठा पानी है, जिसको गंगा यमुना और सारी नदियों का नाम दिया सरस्वती का, वो बिल्कुल पानी मीठा है और उस पानी से बनता है वो।
आपने ट्राई किया है सर एक बार? हम तो उड़िया भी हमको अलाउ नहीं है उधर, कोई पंडा हमको लेते नहीं है उधर। नहीं नहीं, आप मंदिर में सिर्फ आप घूम करके आ सकते हैं, वहां कुछ खा नहीं सकते हैं। मैं वो तो पानी बहुत वानी बार आपको मिलेगा नहीं, वो पानी नहीं अरे मिलेगा, वो सिर्फ भगवान के अ, अ, अच्छा भोजन भोग को बनने में उसका उपयोग होता है, कोई नहीं उसको यूज कर सकता है। अच्छा, मैंने सोचा आपको आप ट्राई करके देखिए नहीं नहीं नहीं, वो आप उसमें कुछ भी वो ऐसा सब नहीं। नहीं है हम। नहीं ठीक नहीं है, नहीं, बोले नहीं है। ठीक। जब भोग बन जाता है उसको आप पा सकते हैं, मगर उसके पहले नहीं। तो यानी हाँ, कोई क्वेश्चन है कोई पार्टिसिपेंट की ओर से? सर बहुत अच्छी बात आपने रखी, जी भगवान की जो लीला की बात है, और बहुत दिनों से आपको सुनने के लिए हम इंतजार कर रहे थे, और आपके मुंह से जो अष्टक भी वो सुनना चाहते थे, लेकिन आपने बता दिया कि जी ये नहीं हो सकता है, तो हम जरूर मिस करेंगे। तो मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कोई सवाल है तो यहाँ पर ले लेते हैं। किसी का किसी को कोई पूछना है, जैसे आलिका जी ने बहुत अच्छी बात रखी कि वो वहाँ के स्थानिक होने के बावजूद भी उनके दिमाग में कोई सवाल है जो अफवाह के रूप में है, मिथ्स के रूप में है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग फैलाते हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने वहां देखी वो ये है कि एक बार जब आप वहां चले गए तो उसके बाद आपका मन वहां से निकलने का नहीं है। मैं तो वहां ये जा करके रात में सो जाता हूँ मंदिर में। सही है सर। मन नहीं करता है कि आओ उधर रह जा, ये मन आने का करता है। मन नहीं करता है, नहीं, आने का मन आने का नहीं मन नहीं करता करता है। मन, है। और मैं तो उधर जाकर के रात में सो जाता हूँ। मैं 10 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक, जब तक वो कोई आकर के उठाएगा नहीं, चलिए प्रभु जी उठ जाइए, अब मंदिर बंद होने वाला है, अपना दर्शन करके मैं वहां सो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि भगवान के गोद में हम सो रहे हैं। और इतनी ठंडी हवा चलती है, इतनी अच्छी हवा रहती है। हाँ संजय जी, आप एकदम एक बार जा करके वहां, मैं तो खासकर वो पश्चिम दरवाजे के सामने सो जाता हूँ, और वहां जो मैं हवा चलती है और बहती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पत्थर पे सोए हुए। मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगी। जी जी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कि मैं पिछले करीब करीब 30 साल हो गए विपश्यना करती रही हूँ। तो मंदिर पूजा पाठ इन सब से दूर रही हूँ। हरे कृष्णा के बगल में हूँ, लाइफ मेंबर हूँ, लेकिन सिर्फ अपना जो बर्थडे का एक दिन होता है वो जाया करती थी, मैं बिल्कुल नहीं जाती थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने की कोशिश कर रही थी, बहुत परेशानियां हैं। तो रोज सुबह उठ के मैं अपने पिताजी को याद करती हूँ कि मेरे को रास्ता दिखाओ, मेरे को कुछ बताओ। मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, किसी से भी कभी कुछ नहीं मांगा। मैं लोगों से यही बोलती, मुझे रास्ता बताओ कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। और फिर अपने आप ही, क्योंकि एक बैकग्राउंड ये रहा है कि मेरे पिताजी उड़िया बहुत अच्छी बोलते थे, और उनके पास एक उनका अपना अर्दली बोलते हैं हम लोग, जो उनका अपना असिस्टेंट जो पानी पिलाता था, उनको चाय पिलाता था, वो हमेशा जी उड़िया रखते थे। तो मैंने बचपन से उनसे उड़िया सुनी है बात करते, और मुझे उड़िया पूरी समझ में आती है। और खासकर जी मैं बंगाल से आती हूँ, तो बंगाली और उड़िया बहुत कुछ एक जैसी है। बालासोर, बाबूजी बालासोर में बहुत दिन रहे। वो तो भद्रक वही का बालासोर की, काम था। भद्रक बालासोर की लाइन बिछाई उन्होंने। हाँ। बाबू जी रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे, तो भद्रक बालासोर भी और संबलपुर रायगढ़ इस समय हमारे परिवार रहते भी है। तो उड़ीसा से एक संबंध था। फिर बाबू जी ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम लिया था, तो उसमें भी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी में ही बाकायदा, जैसे सगाई पिक्चर और कन्यादान पिक्चर में तो एक एक हफ्ता, जैसे मेरा अरुण तो एक हफ्ता रह के आया था, 21 बार कन्यादान देख कर आया था हॉल में माँ के साथ, है ना। छोटा था तो उसको लेके गई थी, अब तक की स्कूल थी। तो उड़ीसा से मेरा एक बचपन का संबंध रहा है, लेकिन मेरा जाना नहीं हुआ था पूरी कभी भी। मेरा जाना दीदी के साथ हम लोग 2011 में गए थे शायद भाई, है ना। तो ये एक फैमिली का फंक्शन था, के दर्शन भी नहीं किए हम एकदम। 11वीं बार गए थे। हाँ, हम मंदिर 11वीं नहीं बार गई। हाँ, मंदिर नहीं गई थी। और अब लेके जाएंगे, धनंजय जी के साथ जाएंगे मंदिर का दर्शन, तो गाइडेड टूर में देखेंगे तभी तो मजा आएगा ना। और ये तो मंदिर का दर्शन यहाँ करवा ही व्हीलचेयर लेते हैं। हाँ व्हीलचेयर का उपाय करिए तब दर्शन हो। हाँ,
तो इनके इनके प्ले में ये दर्शन करवा ही देते हैं, पूरा का पूरा मंदिर आ जाता है। तो ये आप लोगों को भी यही बोलेंगे कि अब ट्रस्ट बन गया है, तो इनका ये जो नाटक है ये कम से कम हर महीने में एक जगह कर सकते, ऐसी व्यवस्था चेष्टा कर रही हूँ। हाँ, एक हम लोगों को करना पड़ेगा। तो यही सबसे विनती है, तो शायद यही है। और जो 56 भोग की बात भी मुझे पता नहीं थी, तो मुझे बहुत अद्भुत आश्चर्य लगता है। मेरे पिताजी का नाम भी गिरधारी लाल था, है ना, जी और अच्छा बदल लूंगा तो नाम बदल के गोवर्धन लाल कर लूंगा, ये बोला करते थे वो, है अच्छा ना। अच्छा। 56 भोग की कहानी भी मुझे आज ही पता चली, मुझे भी नहीं पता। बहुत 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 अच्छा लगा। और मैं तो खैर धनंजय जी के साथ सुन के इतनी कहानियां और भी सुनती रही हूँ, जो सानिध्य मिला है। और अब आगे देखे कहाँ लेके जाएंगे जगन्नाथ प्रभु। नमस्ते, जी जय जगन्नाथ। ये जय सब हमारा जगन्नाथ। सौभाग्य है कि सब जो सर, लोग जुड़े हैं। IAS अफसर थे, उनका नाम तारा दत्त, वो बंगाली में थे, लेकिन इतने रिसर्च किए कि आप पता नहीं चलेंगे। मैंने तारा दत्त नाम, वो हमारा यहाँ भी कलेक्टर थे, और अच्छा थोड़ा ये मैंने उनका सर ये जो पेपर में आए हैं, अभी तो नहीं लिख रहे हैं वो लोग, तो केवल इतने डीप गए हैं सर, जो ये बंगाली है लेकिन इतने डीप गए हैं। जी अगर आप उनका कुछ पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हाँ भी मेरे मन में डाउट जी है सर, इस जैसे 56 भोग, फिर मेरे मन में डाउट था। लेकिन और एक बात है सर, जानते हैं आप जी लोग शायद बहुत रिसर्च किए, उसको गर्भगंजन बाधा कहते हैं, लेकिन जो प्राउड फील करेगा उसको वो खा लेते हैं। कहना ठीक नहीं है। अभी तो देखिए, जो जो सरकार था वो सरकार चेंज हो गया। मैंने ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनका गर्व इतना ऊंचा हो गया कि भगवान ने चेंज कर दिया। एक 45 इयर्स का गवर्नमेंट को डाल दिया, चेंज कर दिया। हाँ, ये भगवान के सब गर्व, सामने बोला ना कि कभी भी गर्व नहीं चलता है। भगवान को आप गर्व नहीं चलता। प्रेम और भक्ति से ही आप भगवान को, भगवान के सानिध्य में, भगवान के साथ रह सकते हैं। उनके सामने एक जो दो चीज जो नहीं चलती है, वो एक है अहंकार और दूसरा है छल। हाँ चल, ये दोनों नहीं चलेगा। आपने छल किया उनके साथ, चालाकी करने की सोची या आपने किसी ने अहंकार करना सोचा, बहुत अहंकार वो खा बहुत लेते, संकट में। खा ले। एक बार गवर्नमेंट चेंज कर दिया सर, वो गर्व गए, अरे वो अहंकार बहुत की वजह से। पूरा प्रलय, पूरा अलय प्रलय कर सकते हैं वो, ये तो बहुत छोटी चीज है। ठीक है, ठीक है। कई लोग ऐसा आते हैं, बोलते हैं कि धनंजय जी क्या होगा, हम लोग सब मुसलमान बन जाएंगे, ऐसा होगा। अरे इतने बार लोगों ने मंदिर में आक्रमण किया है, कितने आए और कितने गए। जगन्नाथ जी भी वही हैं और जगन्नाथ जी के सेवक भी वही हैं और वही रहेंगे। हाँ, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, उसके लिए हमें सब कुछ करना है। और भगवान उसके लिए आपको पूरा आशीर्वाद भी देते हैं। इसीलिए हमारे जितने देवी देवता हैं वो बोलते हैं कि आप पहले तो, हमारा सबसे पहला नियम है कि अहिंसा। पहले तो हम बिल्कुल अहिंसावादी हैं, सनातन धर्म वाले, मगर या बुद्ध धर्म वाले या सिख, सब कोई सब सब अहिंसावादी है। जितने भी सनातन धर्म से जो पंथ निकले वो भी पहले अहिंसावादी सब। मगर अगर किसी ने आपके धर्म के ऊपर किया तो हम उसके लिए, रक्षा के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। इसीलिए हमारे सारे देवी देवताओं के पास आप देखेंगे अस्त्र शस्त्र हैं, मगर सबसे पहले उनका आशीर्वाद ही है कि हाँ ठीक है, सब कुछ अच्छे से चलो, अहिंसावादी है। मगर वो वाला गांधी वाला ये नहीं कि एक मार दो तो हम तुम्हारे को फिर दूसरा गाल दे देंगे, वो नहीं। तो ये कभी ऐसा होने वाला नहीं है। और क्योंकि जो सनातन धर्म है उसको स्वयं भगवान ने उसकी रचना की है, और स्वयं भगवान वहां बैठ करके सारी चीजों का, पर सब चीज को, सभी को वो अपने अंदर लेते हैं। बोलते हैं कि राक्षस भी मेरे अंदर ही है और राक्षस का विनाश भी मैंने ही करना है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अपना धर्म करो। अर्जुन को बोला तुमसे जो होगा तुम करो। और अश्वत्थामा में जब पांडवों के पांचों ये पुत्रों को मार दिया युद्ध खत्म होने के बाद, और परीक्षित की जान लेनी चाहिए, जो अभिमन्यु का जो पुत्र था, जो उसके कोप में था, उसके लिए जो चला दिया उसने ब्रह्म।
तो आज भी देखिए अश्वत्थामा की क्या स्थिति है। आज भी वो घूम रहे हैं दुख को लेके। और मैंने अभी कहीं हाल फिलहाल सुना था कि वो अश्वत्थामा जो थे वो किसी डॉक्टर के पास पहुंचे, और उस डॉक्टर ने देखा कि इतना बड़ा घाव जो है, क्योंकि उन्होंने मणि निकाल दिया ना श्री कृष्ण ने, तो वो घाव को देख हाँ, के इतना बड़ा घाव जो था, और वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे घाव इनको आ गया। तब उसको लगा कि अरे ये कहीं अश्वत्थामा तो नहीं है। तो बोले आप क्या अश्वत्थामा है? और जैसे ही उन्होंने बोला वो आदमी वहां से गायब हो गया। आज भी अश्वत्थामा जो है अपने घाव को लेकर के घूम रहा है। और कई लोग कहते हैं कि वो एक जगह है मध्य प्रदेश में या कहीं पर, जहां पर वो हल्दी और तेल मांगते हैं उस घाव में लगाने के लिए। सोचिए, वो एक ऐसे चिरंजीवी है जिनको अमरता जो है वो एक श्राप के रूप में मिली है। तो भगवान के सामने ना छल चलता है ना अहंकार चलता है। उनको दिया था ब्रह्मास्त्र का विद्या थी, मगर ब्रह्मास्त्र किस तरीके से उन्होंने उसने उपयोग किया। चिरंजीवी है और वो बलशाली भी था, मगर किस तरीके से उसने छल किया। जाकर के सोए हुए थे पुत्र पांडवों के, युद्ध खत्म हो गया था, फिर जाकर के मार मार दिया पांचों पुत्रों। ये- चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सामने भगवान की कथा। इस समय जब भगवान का बहुत ही अच्छा समय, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फेस्टिवल रथ यात्रा आ रहा है, और अभी स्नान यात्रा गई, तो ये संजय वनानी जी के माध्यम से ये करीब 17, 18, 19 लोगों ने भगवान के कथा सुनी, उनके और बाकी सारी चीजों को समझा। ये बहुत ही अच्छा लगा। ये आपने हमें एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान किया संजय जी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी श्रोताओं का। सर संजय जी कब गए पुरी? जी संजय जी। हाँ, मैं गया हूँ सर। अरे लेकिन अब तो जब हम भुवनेश्वर में मिले थे, मैंने आपको पूछा जाएंगे ना, से नहीं, आज अब टिकट है, रिटर्न टिकट है। नहीं, उसी याद दिन है नहीं आपको? गया था मैं। उसी में बहुत पहले गया हूँ। अच्छा जब अच्छा अच्छा ठीक। मैं पढ़ाई करता था उसी टाइम पे गया हूँ। अब मुंबई में एक हमारे प्रोग्राम में धनंजय कपूर साहब का जब मंजुला मैडम ने हमें संपर्क करवाया, तो उनकी हम्म, बातों से हम काफी प्रभावित हुए और हमें लगा कि कहीं न कहीं उनके साथ जुड़ना है और ये भगवान की जो बातें हैं वो लोगों को बीच में लेकर जाना है। हालांकि अच्छा हमें अच्छा। तो इतना सारा नहीं पता था। हम्म, और उनका अष्टक हमने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया था, तो आज भी हाँ, कभी कभी सुनते हैं। और अच्छा, हाँ, उस समय अब किए थे, राइट। उस समय भी किए थे। तो जी। बहुत अच्छी सर बात लगी और लोगों ने भी, मैं मानता हूँ कि बहुत दिल से इस बात को सुनी है। ये जी बात पुराना मंदिर थोड़ा नया हो गया है थोड़ा। ये जो परिक्रमा प्रकल्प है ना, वो चारों तरफ एक रोड बन गया है और थोड़ा हाँ, अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा हो गया है, बहुत लेकिन ही अच्छा। कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम है अभी तक, क्योंकि वो ट्रैफिक थोड़ा जाम हो रहा है, लेकिन डिजाइन बहुत बढ़िया हो गया है। एक बार हाँ, आइए। और बहुत अच्छे ये लगा दिए हैं पेड़ वगैरह लगा करके। कोई पार्टिसिपेंट को, अभी एक आध कोई पार्टिसिपेंट को फीडबैक बताना है इस सेशन के बारे में तो बता सकते हैं। बाकी मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाली है, सर आपका बढ़िया है, क्या क्या बताएंगे जो भगवान जगन्नाथ की आपने कथा सुनाई, और सर जी, सर तो एकदम ने इतने रिसर्च किए। मैं तो उड़िया हूँ, मैं तो जगन्नाथ की संस्कृति में आया हूँ, मेरे जन्म ही आया हुआ है, फिर भी मेरे को जो जो दो चार डाउट था, वो डाउट आज क्लियर हो गया है। देखिए, अब तो मैं एक चीज चलिए। बताना भूल गया, इनका ऑफिशियल नेम क्या है। सब जैसे हम लोग सबके ऑफिशियल नेम होते हैं, और एक डाक नाम होता है या पुकारने का होता है। तो इनका जो जगन्नाथ जी का ऑफिशियल नेम है गोपी जन वल्लभ श्री कृष्णा। या गोपी जन वल्लभ श्री कृष्णा। और सुभद्रा माँ का है महाविद्या भुवनेश्वरी। हम्म, और बलभद्र जी का है भागवत वासुदेव। या ऑफिशियल नेम वो भी आज हमें नहीं पता था सर। क्योंकि जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम ये सब जानते हैं। हाँ। गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण, महाविद्या भुवनेश्वरी, भागवत वासुदेव।
थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी बात है बताई आपने। किसी पार्टिसिपेंट को कुछ बताना है, किसी को भी कुछ बोलना है? सुमिता मैडम है, मोहिनी कपूर मैडम है, सुष्मिता मिश्रा आप जी लोग है। सबसे एक आग्रह है कि आप लोग हम लोगों से जुड़े। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है भंडीरा ट्री के नाम से। उस पे आपको काफी सारे वीडियोस भी मिलेंगे। बस नहीं करना। और अगर आप लोग अपने अपने माध्यम से किसी भी भक्तों को जानते हो, जो हमारी जो भगवान जगन्नाथ की कथा जो है, जो हम एक नाट्य रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो आप अपने माध्यम से किसी जो बड़े लोग हैं जिनके पास ऐसी क्षमता होती है कि वो एक भागवत कथा करा दे, जिसमें करीब, डिपेंड करता है कहाँ करा रहे हैं, उसमें 8 से 10 लाख रुपए लगते हैं, मगर हम 2 शो उसमें करते हैं। और एक एक कथा जो है वो करीब 4.25 4.5 घंटे की है, मगर इस तरीके से डिस्कशन होते होते उसमें 6 साढ़े 6 घंटा लग जाता है। तो एकदम जो ट्रिपल कॉस्ट है हमारा किसी भी चीज का, वो इसीलिए है क्योंकि अधिकतर नाटक जो होते हैं वो 1 घंटे 1.5 घंटे के होते हैं, और हमारा जो है वो कम से कम 4.5 से 6 घंटा जाता है। तो इसलिए हमारा उसमें उतना पैसा भी खर्च होता है। और 24 लोग भी हैं। एक पूरा हमारा ट्रक है जिसमें सेट प्रॉपर्टीज होती है। तो लास्ट में हम पूरा भगवान का मंदिर बना देते हैं। और पूरा रथ भी हमारा, जिस तरीके से आप जो रथ देखते हैं जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में निकलता है, वैसे ही हमने भी जगन्नाथपुरी में ही वो रथ बनवाया है। और भगवान के ही शिल्पकारों से बनवाया है। कारपेंटर है जिसको महारन कहते हैं, वहां पे उनसे बनवाया है। तो वो भी ज्यादा नहीं, 4 5 साढ़े 4 फुट का है। मगर वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप रथ यात्रा में रथ खींच रहे हो। तो वो सारी चीजें एक पूरा रथ में होता है। हमारे पूरे काम, पूरा जो प्रस्तुति हम करते हैं, तो अगर आप लोगों के माध्यम से हम अगर ये आने वाले रथ यात्रा में या उसके बाद या जब भी भगवान चाहें करवा सकें, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरूर जरूर। ये बहुत सर बड़ी मेरा सेवा होती जो चैनल है वो मैंने लिंक पे डाला है। जो यूट्यूब में भंडेरा ट्री का जो चैनल है वो आप देख सकते हैं। जरूर जरूर। और कोई किसी को सर कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और संजय जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत आज एक सुंदर सा हमें यहाँ पे जूम के माध्यम से एक खूबसूरत सी भगवान की कथा, हालांकि मुझे पता नहीं था लेकिन कुछ नई नई बातें भी मैंने सुनी। मैं जानती ही नहीं थी कुछ भी जगन्नाथ जी के बारे में, बिल्कुल नहीं। मैं उत्तराखंड की हूँ, मैं उनके जानती बारे ही में नहीं। जितना जानना है उतना ही कम है, हाँ जितना जानिएगा उतना ही कम। हाँ, और मुझे ना सर, मैं जहाँ कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो उनकी जो, ये जानती हैं मंजुला जी, उनकी बहू है, वो भी कुछ करवा रही है। तो वो चाह रही थी कि भजन चाहिए उनको, उन्होंने सारे भजन देखे, बोली मुझे जगन्नाथ के भजन चाहिए। तो उनको नहीं मतलब उनको ये लग रहा था कि उनके भाव लिखने, तो मैंने कहा मैडम मुझे तो आते ही नहीं है, और मैं भजन तो कभी लिखती ही नहीं हूँ, और मैं कविता लिख सकती हूँ, भजन कभी लिखती नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ट्राई करो ट्राई करो, तो पता नहीं ट्राई करा, और मैंने 4 लाइनें भेजी तो वो तो एकदम वो हो गई, बोले नहीं नहीं तुम्हें, अब तुम्हें करना है। और मेरे को बोलती अब तुम्हें गाना है। मैंने कहा ये सब तो मैं नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं कैसे बन रहा। और मैं सो रही हूँ ना सर, तो एक लाइन पता नहीं कैसे आ रही है, सुबह उठ रही हूँ एक लाइन आ रही, मैं रात 2 बजे उठ के एक लाइन लिख रही हूँ। क्या ये मेरे उसी का मुझे लगता है कि जगन्नाथ इज द लिविंग गॉड, ये भी जान। मतलब भगवान के बाकी अवतार यहाँ लीला करके चले गए अपने अपने धाम, राइट। मगर जगन्नाथ जी जो हैं वो अभी और हमेशा सर्वदा पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। प्रलय के बाद, प्रलय समय में भी उपस्थित रहते हैं। वही तो मैंने आपको बोला, मार्कंडे जी आते हैं, देखते हैं कि अरे ये पेड़ क्यों नहीं हिल रहा है, तो जगन्नाथ जी उस वृक्ष बन करके वहां अरे हैं। विद्यमान है। तो भगवान कभी लुप्त नहीं होते, जगन्नाथ जी कभी लुप्त नहीं होते। हाँ, और मुझे और वो सब एक्चुअली जितने भी आश्चर्य। भगवान के अवतार आते हैं, राम जी ने लिखा है अपने उत्तराखंड के 108वें अध्याय में 24वें और 25वें श्लोक में लिखते हैं कि, और बोलते हैं विभीषण और हनुमान को कि मेरे पृथ्वी से जाने के उपरांत तुम जगन्नाथ जी की स्तुति करना। वो बोल के गए। अच्छा, और आप देखेंगे कि जगन्नाथ जी की जो ये जो दीवार है, जो उनका जो जिसको हम लोग मेघदूत कहते हैं,
उसमें जगह आठ तरीके से 8 हनुमान जी उसकी रक्षा कर रहे हैं। जी जी। बैटरी लो है। और कई बार ऐसा देखा गया है जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि विभीषण जो है वो वहां पर भगवान की स्तुति करने आते हैं। बैटरी लो हुई है। हाँ जी। विभीषण स्वयं भगवान की स्तुति करने आए। एक बार ये एक पुरोहित थे, भगवान के सेवक थे, आज से करीब 70 साल पुरानी घटना है। वो बोलते हैं कि अरे भगवान की स्तुति कैसे करने आ जाते हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो मंदिर में छुप गए और दरवाजा बंद हो गया। तो 2-4 दिन ऐसे ही करते रहे। तो एक दिन वाकई देखते हैं कि एक बहुत ही विशाल ऊंचाई का आदमी, कद का आदमी जो है वो आता है और भगवान प्रवेश करता है मंदिर में। दरवाजा बंद है, सब कुछ, और भगवान को फूल पुष्प वगैरह चढ़ाता है और अपनी बातें करता है भगवान से, और फिर जाने लगता है। तो वो बोलता है कि आप कौन है, उनसे जाकर के पूछता है वो। तो बोलता है मैं विभीषण हूँ। बोले आप विभीषण है, इसका मुझे कैसे प्रमाण मिलेगा, आप कुछ दीजिए। तो उन्होंने अपना कुंडल निकाल करके दिया। दूसरे दिन सुबह उस पुरोहित ने अपनी वो कथा सबको बताई, तो लोग मान नहीं रहे थे। तो फिर मगर जाकर के उन्होंने देखा कि उस जगन्नाथ जी के ऊपर वही फूल पुष्प चढ़े हुए हैं जो सिर्फ श्रीलंका में मिलते हैं। क्या बात। तो सिर्फ श्रीलंका में मिलते हैं। और वो जो उनके हाथ में जो कुंडल दिया था वो काफी बड़ा कुंडल था, और वो उनके पास करीब 40-50 साल तक रहा उनके घर में। फिर उनका घर जब उन्होंने वापस तोड़ करके बनाना शुरू किया तो वो गायब हो गया। ध्यान इधर उधर हुआ होगा किसी का तो वो गायब हो गया। ऐसे गायब नहीं होगा आगे। और कहीं उस रेनोवेशन में कुछ इधर उधर बात हुई, वो गायब हो गया। एक और कथा जो सुनने को मिलती है कि एक बार एक पुरोहित रात के समय सेवा करके लौट रहे थे, और वहां सामने जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया देखा कि अरे एक देवी एकदम सामने खड़ी है और हाथ में दीप और ये थाली वगैरह सब कुछ है। तो वो ऐसे स्तब्ध हो गए। तो वो देवी ने कहा कि मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ जो मैं आपके रास्ते में आ गई। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो बोले कि नहीं, मैं इसका प्रायश्चित करूंगी। और वो उनके घर में दासी बन करके करीब 30-40 साल, जब तक वो पुरोहित जीवित थे, उनकी सेवा की उन्होंने, उस देवी ने। वो किसी को नहीं दिखती थी, सिर्फ वो पुरोहित को दिखती थी। और जब उनका उनका वो चले गए, उनका अंत हो गया तब उसके बाद वो वहां से चली गई। तो ऐसा कहते हैं कि देखिएगा कि आप जब देखेंगे भगवान जगन्नाथ की जो आंखें देखेंगे तो उनमें भाव नहीं है। मतलब ये जो आई लैशेस हमारे होते हैं ना, जो हमारी आंखों को बंद करती है, जब हम सोते हैं तो उसमें रोशनी नहीं जाने देती है, वही आई लैशेस जो है भगवान की आई लैशेस नहीं है, बलभद्र की है, सुभद्रा जी की है, जगन्नाथ जी की नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सोते नहीं है। जब मंदिर बंद हो जाता है तो देवी देवता स्वर्ग से और दूसरे लोकों से आकर के उनसे उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो जगन्नाथ जी एक पल भी नहीं सो पाते। और ये कल्पों से चला आ रहा। कल्प आते हैं, कल्प जाते हैं, जल थल एक हो जाता है, फिर सृष्टि का निर्माण हो जाता है, और भगवान वही है। देखिए क्या क्या मतलब भगवान की कितनी कड़ी परीक्षा, भगवान होने का अर्थ कितना कितना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट और कितना कठिन है। उन्होंने बलभद्र जी और सुभद्रा जी को बोल दिया हाँ तुम निद्रा कर लो। तो हम ये बोलते हैं कि भगवान को गीत गोविंद सुन बड़ा करके हमने सुला दिया, उनका शयन करवा दिया। मगर जब मंदिर बंद होता है तो देवी देवता आते हैं, और इसका प्रमाण है। और ये वहां के पुरोहितों ने बताया, विभीषण आए, ये आए, ऐसे बहुत सारी कथाएं। इसीलिए भगवान होने का अर्थ बड़ा कठिन होता है। ये लोग जो कह देते हैं ना भगवान ओशो रजनीश तो बड़ा अजीब लगता है। सर नहीं, राजेश
बहुत बहुत अच्छी बातें बनाई, ऐसा लगता है कि आपको सुनते ही जाए। लेकिन अब मुझे मन करता है मैं बोलते ही जाऊं जगन्नाथ जी के बारे में। हाँ बहुत कम जानता हूँ और मगर आप में भी एक भाव ये निकलता है, और बहुत अच्छी बात रखी सर। सर हम चाहेंगे कि आप और हमें एक मौका देंगे कि जहाँ पर एक और विषय पे और थोड़ा लंबा, इनसे भी थोड़ा लंबा बात रखने की बात करेंगे। और आज आपने समय दिया, आप सब पार्टिसिपेंट भी जुड़े, क्योंकि कभी-कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि एक विषय पे प्रोग्राम तो लेने के लिए मतलब स्पीकर तो मिल जाएँगे, लेकिन सुनने के लिए कौन आएँगे? तो हमें कभी न कभी डर ज़रूर रहता है, लेकिन मैं पार्टिसिपेंट जो सहभागी है आज के, उनको भी तारीफ़ करूँगा कि उसने भगवान की बातों पे जी जी। सुनने नहीं, के जगन्नाथ जी लिए। का तो आप ये सोचिए कि मैं इस बार थोड़ा सा अभी मुझे वो भी हो रहा है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है और हमारा कहीं जो नाट्य कृति है उसकी प्रस्तुति होने का कहीं प्रोग्राम फाइनल नहीं हो पाया है। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, मगर फिर भी नहीं हो पाया। मगर ये मुझे मालूम है कि भगवान की कथा को जिसको भगवान को सुनाना है उसी को सुनाएंगे। तो आज भी जितने लोग जुड़े हैं वो वही लोग हैं जिनको भगवान सुनाना चाहते थे और जिनके हृदय में भगवान के प्रति वो भाव था, वही जुड़ पाए थे। सही बात ठीक है, है सर, सही बात सही है। बात वेरी ट्रू। भगवान की कथा कोई सुन ही नहीं सकता जब तक सही भगवान का सही, बिल्कुल आशीर्वाद ना सही हो। बोला, सही बात। बिल्कुल सही बात है। और सर ये मैं यहाँ पर ख़त्म करते हैं ऐसा नहीं बोलूँगा, यहाँ पर विराम लेंगे। विराम लेते हैं हम लोग। विराम लेंगे और फिर से आपको सुनने का कहीं न कहीं अवसर ज़रूर बनाएँगे। ठीक और है। फिर से मैं सभी लोगों को शुक्रगुज़ार हूँ। धनंजय कपूर साहब, आपने जो भक्ति की है, भगवान की भक्ति की है, और आप हमें मिले, वो भी हमारे लिए बहुत आशीर्वाद हम समझते हैं, भगवान की कृपा समझते हैं। थैंक यू सो मच आपके मंजुला हृदय में भगवान के प्रति वो भक्ति थी तो हम जुड़ गए। और जी। जुड़ाने वाली मंजुला दीदी और अब रीजन क्या था, अब देखिए हमारा वो ट्रस्ट भी आपके गाइडेंस में खड़ा हो गया है। संजय जी सबसे पहले है। आपके पास आए उस ज्ञान को लेने के लिए किस तरीके से ट्रस्ट बनना चाहिए। देखिए किस तरीके से आदान प्रदान चल रहा है और ये चलता रहेगा। ठीक है, ज़रूर सर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय 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 जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम राम राम।